रास्ते में कदम रुकते नहीं बल्कि उठाए जाते हैं। Siapa yang angkat kaki untuk हम आए नहीं, अल्लाह ने keluar dari हमें लाया। Allah अल्लाह का बड़ा करम है। Ini adalah satu kasih sayang dari Allah SWT. अल्लाह 100% Satu kemuliaan dari Allah 100% SWT. कामयाबी 100% दीन में रखे। Punya Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan kejayaan. Satu status hanya adalah agama Allah कामिल और Subhanahu Wa मुकम्मल Taala. दीन होगा, उसको अल्लाह हर हाल में कामयाब करे। Siapa yang ada agama yang जिसकी sempurna, जिंदगी में दीन ना होगा apa sih वो keadaannya हर pasti Allah हाल akan में bagi dia kejayaan. नाकामयाब नाकाम। Siapa yang tidak ada agama, दीन pasti क्या है? dia akan उलमा menjadi इकराम फरमाते kegagalan. हैं 5 चीजों का मजमुआ है। दीन क्या है? Dalam agama ada 5 jenis bahagian manusia. ईमानियात, Orang yang ada agama, मामिलात, माशरात, अखलाक। ada 5 perkara: imaniat, akhlakiyat, 5 ibadat. चीजों को लेकर दीन कामिल और मुकम्मल होगा। Apabila kita bawa 5 perkara ini, barulah kita dapat bawa agama yang सबसे sempurna. मुकद्दम वो ईमान है। Yang pertama sekali iman. ईमान की मिसाल फरमाया जैसे दरख्त की जड़। Iman contohnya seperti satu pokok. जड़ मजबूत होती है, Kalau akarnya kuat, मजबूत होता है तो उसका तना मजबूत होता है। barulah dia punya pokok dia akan kuat. तना मजबूत है, उसके टहनियाँ ढालियाँ मजबूत हो जाती हैं। Kalau batang pokok उसके dia ढालियाँ kuat, मजबूत हो, उसमें barulah पत्ते भी semua आएंगे, फूल भी आएंगे, फल dia भी punya आएंगे। cabang-cabang, daun-daun dia akan jadi kuat. ईमान वो जड़ है Begitulah और उसका तना kiranya इबादत। iman itu kuat, ईमान akarnya मजबूत kuat, हो जाता है तो इबादत में जान पड़ maka जाती ibarat dia akan है। jadi तना kuat. मजबूत हो जाता है। इसका तना मजबूत, Dia punya akar उसके kuat, ढालियाँ, maka उसके टहनियाँ। pokok dia akan फरमाया jadi kuat. मामिलात, उसके ढालियाँ क्या है? मामिलात। Jadi apabila iman dia kuat, उसमें maka पत्ते भी आते हैं, amalan dia akan फूल भी menjadi आते baik. हैं। ये फरमाया माशिरा, घरेलू जिंदगी, Begitu juga मामिलात, masyarakat. लेन देन, Muamalat yaitu jual beli. तिजारत, Cara kita berniaga. मामिलात का माशिरात, घरेलू जिंदगी। Masyarakat itu kehidupan kesabaran फिर orang. फरमाया दरख्त का मकसद तो क्या होता है? क्या होता है? फल। वो फरमाया अखलाक। Apa yang mencantikkan satu pokok adalah buah-buahan. फल मकसद है, फल का जूस मकसद है। Tujuan yang benar bagaimana akan keluarnya buah-buahan. जूस वाला फल कौन सा फल? Buah-buahan boleh dimakan, boleh diminum. Bukan jus. जूस होना चाहिए ना। आम हो, आम में मीठा भी हो, रस भी निकले, जूस निकले। ये फरमाया इखलास। क्या है? फल अखलाक है, उसका जड़ रस अखलाक। Buah-buahannya ini adalah कसब का दारोमदार akhlak उस पर है। dan jus daripada buah-buahan itu adalah ikhlas. ईमान मजबूत, उसके अमल मजबूत, Iman kuat, maka उसके amalnya मामला, kuat. उसके माशरा, उसके Amalan, अखलाक। masyarakat,nya ईमान क्या है? lebih baik. Apa itu अल्लाह iman? से होने वाला यकीन, Yakin hanya kepada Allah. अल्लाह के हुजूरी का इस्तेहज़ार, एक अल्लाह से होने वाला यकीन। Ada dalam hati dia hanya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. दावत की इस मुबारक मेहनत, Dengan kerja dakwah inilah ये कुछ खुसूसियात है। ini satu perkara yang khas. दावत की इस मुबारक मेहनत की कुछ खुसूसियात है, स्पेशलिटी है। Dan dalam kerja dakwah inilah perkara yang paling ये मेहनत करेंगे तो क्या मिलेगा? khusus. फरमाया इस मेहनत से Dengan सबसे usaha पहले ini apa अल्लाह kita akan यकीन को dapat? बनाए। Yang pertama sekali kita akan dapat yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. अल्लाह इस मेहनत के जरिए से बनाएगा। Dengan usaha ini Allah Subhanahu Wa Taala bina दावत का सही तो ईमान का सही। iman. हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले सहाबा को Yang pertama sekali दावत की Nabi मेहनत पर लगाए। telah letakkan sahabat dalam kerja dakwah. अल्लाह के घर में नाम लेने की इजाजत नहीं थी। अल्लाह के घर में नाम लेने की इजाजत नहीं थी। हम सुनते हैं ना, अबू बकर सिद्दीक Pada रज़ी अल्लाह awalnya तआला nama Allah pun tidak boleh disebut di depan Ka'bah. कितना उन पर टूट Di पड़ी। depan rumah Allah. Abu Bakar lah orang yang pertama telah अल्लाह के istiharkan घर में अल्लाह के नाम लेने की mengenai इजाजत नहीं थी। penyaksian kepada Allah. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में चल फिर कर घरों में दार अरकम में Nabi SAW telah buat usaha secara सहाबा को हुजूर ने दार अरकम sembunyi-sembunyi में जोड़ा। dan mereka telah berkumpul di rumah sahabat. सबसे पहले Itulah हुजूर sahabat सल्लल्लाहु yang अलैहि bernama वसल्लम Arqam, सहाबा को जोड़ा Darul दार अरकम में। Arqam. अल्लाह के घर में जुड़ने की इजाजत नहीं। अल्लाह के घर में
अल्लाह का नाम लेने की इजाजत नहीं। Tidak diberikan keizinan दावत की untuk सबसे पहले हुजूर की mendakwakan nama Allah di depan Ka'bah, di depan rumah Allah. मुतफक्किर बनाए, सहाबा को मुतफक्किर बनाए, फिर सहाबा मुतफक्किर हो गए तो मुतहर्रिक हो गए। Sahabat Nabi पहले SAW आदमी telah bentuk मुतफक्किर होता है, dan फिर mereka मुतहर्रिक menjadi होता है। orang yang ada fikir, orang yang ada मुतफक्किर होता है, kerisauan. फिर मुतहर्रिक। Apabila mereka ada kerisauan, maka mereka akan कुव्वत फिक्र, bekerja. बड़ी ताकत है। दुनिया में जितनी भी हरकत Fikir हो रही ini है, adalah चलत satu फिरत हो रही है, perkara yang कुव्वत begitu फिक्र की besar. बुनियाद पर हो रही है। Dengan kekuatan fikir, maka dunia ini telah berubah. अपने आल औलाद की फिक्र हमें दुकान को ले जा रही है। घर वालों की फिक्र, Setiap घर वालों orang की apabila जिम्मेदारी का mereka एहसास, fikir untuk anak istri, maka anak istri dia मुतफक्किर है dapat इसलिए मुतहर्रिक है, बीमार है, kemudahan dan sebagainya. सर में दर्द है, तबीयत खराब है, फिर अपने काम को जा रहा है, अपने दुकान को जा रहा है, Orang yang ada fikir yang betul terhadap kedai dia, toko dia, dia sakit, dia demam, dia dalam keadaan apa sekalipun dia akan pergi ke kedai dia akan pergi ke toko dia. दावत की मेहनत का सबसे बड़ी Begitu juga dengan kerja dakwah ini. यकीन बनता है। Yang pertama sekali itu pikiran नंबर betul, दो, yakinan yang दावत की betul. मेहनत से अल्लाह माहौल को बनाते हैं। Dengan dakwah ini Allah SWT akan bentuk suasana. दीन पर चलने के लिए कोई चीज को देखने के लिए दो चीजें चाहिए, अंदर का नूर, आंख में नूर होना चाहिए। Dapat memakan usaha ini, maka kita ada dua cahaya. Satu cahaya daripada dalaman. नजर नहीं आता है तो उजाला होने के बावजूद नजर नहीं आएगा, अंदर की कुव्वत नहीं है, देखने की ताकत नहीं है, अंदर का नूर नहीं है। Apabila di dalam आंख तो अच्छी है लेकिन बाहर अंधेरा है तो भी चल नहीं सकता है। kita mau melihat satu perkara, ada dua cahaya, satu cahaya dalam mata, satu cahaya di luar mata. आंख तो अच्छी है, Kalau cahaya di luar उजाला नहीं है, नूर tidak ada, नहीं है। walaupun cahaya di dalam ada, dia tidak dapat melihat. तो अंदर की Jika भी ada ताकत cahaya चाहिए, बाहर daripada की भी ताकत dalaman dan चाहिए। luaran. दीन पर चलने के लिए अंदरूनी ताकत, ईमान की ताकत चाहिए। Untuk kita और dapat बाहर की jalankan ताकत, agama, माहौल maka की kita ताकत kena ada चाहिए। dua kekuatan. Kekuatan dalaman dan kekuatan luaran. एनवायरनमेंट, माहौल, Yang pertama, kita kena ada बेनमाजी भी नमाजी बन keinginan. जाता है। Yang kedua, kena ada suasana, environment, माहौल, mahol, suasana. सब नमाज पढ़ रहे हैं, Semua orang sholat. दुनिया में माहौल हो गया, सब नमाज पढ़ रहे हैं। Bila jadi suasana semua हमारे orang sholat. मद्रास में, तमिलनाडु में, मद्रास में Di tempat ini, di Tamil Nadu, di मुसलमान India, नमाज को ना जाए तो खैर पूछता है, भाई बोलो इकबाल या जुम्मा वाचे हमारे जमाने में, भाई जुम्मा का दिन नमाज को नहीं गए, कौन पूछता है? मुसलमान नहीं, कौन? खैर पूछता है। apabila suasana telah jadi माहौल है, sehingga orang yang bukan Islam pun tahu hari ini hari Jumat. Kalau ada orang Islam tidak pergi ke Jumat, bukan tanya, bukan orang Islam yang tanya, orang yang bukan Islam yang tanya. पहले ईमान बनता है, Kenapa kamu फिर tidak अल्लाह sholat माहौल Jumat hari बनाते ini? हैं दावत के जरिए। Ini akan terbentuk suasana agama dengan apa? Dengan itu kerja dakwah. दावत की मुबारक मेहनत की खुसूसियत ये है, Inilah दावत keberkatan daripada उसूलों के kerja साथ dakwah. होती है, जैसा करना वैसा करें तो दावत की इतनी बड़ी Bagaimana ताकत है, yang Allah दावत kendaki kita buat kerja dakwah, maka begitulah Allah SWT akan bagi kesan दावत से kepada क्या orang होगा? lain. दुश्मन दोस्त हो जाए, Musuh pun akan menjadi पूरी kawan. तारीख उठाकर देखें। Dushman भी दोस्त बन जाएगा. जब Musuh मेहनत pun akan चली, menjadi तो kawan. अल्लाह ने ईमान यकीन को बनाया। Apabila kita buat dengan cara जब betul, maka हुजूर Allah सल्लल्लाहु SWT akan अलैहि bentuk वसल्लम iman की yakin मेहनत kita. लेकर खड़े हुए, तो मेरे अजीज भाई बुजुर्गों, काबतुल्लाह के अंदर 360 Tuan-tuan, dulu di dalam Ka'bah ada 313 di dalam dan di luar Ka'bah. Patung berhala. मेहनत चली, अल्लाह ने ऐसे माहौल बना कि ईमान के बगैर कोई Allah Subhanahu wa taala telah bentuk satu suasana iman sehingga sahabat-sahabat mereka terciptakan semua patung-patung. तो मेरे अजीज भाई बुजुर्गों, Tuan-tuan, सबसे पहले मेरे अजीज भाई बुजुर्गों, लोग कहते हैं तबलीग जमात, तबलीग जमात। dulu orang bilang jemaat tabligh, jemaat tabligh. लोग कहते हैं तबलीग, हम भी कहते हैं तबलीग जमात, तबलीग। Jemaat tabligh, jemaat tabligh. हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो तबलीग जमात नाम रखा ही नहीं। Maulana Ilyas sebetulnya begitu, saya tidak pernah pun meletakkan nama jemaat tabligh ni jemaat tabligh. Saya tidak pernah pun. नमाज सबको पढ़ना है, चंद लोग नमाज पढ़ते हैं, चंद लोग नहीं पढ़ते हैं। Ada orang sholat, ada orang tidak sholat. ये नमाज़ों की जमात, ऐसा कुछ है? ये नमाज़ों की जमात है। Semua orang sholat, tapi tidak juga orang panggil, oh ini jemaah sholat, sudah. हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने Maulana फरमाया, Ilyas rahmatullah alaihi, अगर मैं इसको नाम रखता, kalau ada nama yang saya boleh letakkan pada jemaah ini, ठीक है ईमान, sudah pasti saya akan letakkan jemaah meningkatkan iman. फिक्र पैदा हो जाए, अपनी आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए। Apabila mereka ada fikir iman, maka baru mereka ada fikir tentang akhirat. तो ईमान की फिक्र पैदा होती।
जब ईमान की फिक्र होगी तो आदमी ईमान की मेहनत करेगा। Bila satu orang ada fikir suatu iman, जब maka ईमान baru की dia मेहनत akan usaha करेगा atas तो iman. ईमान की फिक्र पैदा होगी। लाजिम मलजूम है। Itulah kita mau jadikan setiap orang ada मेहनत का fikir खुलासा atas ये है कि मेरा iman mereka, ईमान, risau हर atas ईमान iman वाले mereka. की मौत खातिमा बिल खैर कलिमे के साथ है। Orang ये yang ada मकसद fikir है atas मेहनत। iman, insya Allah dia akan mati dalam ये 2.5 keadaan घंटे, beriman. ये 3 दिन, ये चिल्ला 4 महीना, Itu ये 3 कुर्बानी hari, इसलिए 40 hari, देना 4 चाहिए bulan. हर ईमान वाले के अंदर अपने आखिर खातिमे की फिक्र पैदा हो जाए। जब मैं दुनिया से जाऊं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, Orang yang ada अशहदु fikir अन्ना risau मुहम्मद di akhirat, रसूलुल्लाह, dia fikir ये macam कलिमा mana पढ़कर मेरी मौत आ जाए। sebelum saya mati nanti saya dapat ये ucap तहकीक kalimat ईमान, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. ईमान के बारे में मुतफक्किर बनाने वाली मेहनत। Inilah usaha मेरे अजीज bagaimana भाइयों, supaya setiap जब orang ईमान की मेहनत mereka ada छोड़ fikir के atas iman. ईमान वाले को याद भी नहीं रहा कि मेरी मौत ईमान के साथ आना। Orang yang ada fikir mengenai ना iman, ईमान maka वाले dia के akan अंदर fikir इसकी फिक्र भी नहीं कि मेरी मौत mengenai ईमान के maut साथ yang आना kemana है। dia mati दुआ dalam भी keadaan नहीं कि beriman. अल्लाह से मांगे अल्लाह मेरी मौत ईमान के साथ अता कर। दुआ भी नहीं। Tuan-tuan, orang yang tidak ada fikir atas iman, maka dia tidak akan doa pun. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan iman. Ya Allah, bagilah penghujung kehidupan saya dalam keadaan saya dapat bawa iman yang sempurna. Tidak akan fikir kemana waktu dia mati dia berucap kalimat. डॉक्टर भी अल्लाह वाले होते, डॉक्टर भी अल्लाह वाले होते। वो कहते हैं बड़े अल्लाह वाले किताब में लिखे हैं उनके जो आईसीयू वार्ड में ऐसे 100 पेशेंट जो सकरात की हाल में थे आईसीयू वार्ड में। Satu orang dokter bekerja sudah dalam hospital berapa puluh tahun, dia beritahu, saya lihat depan mata saya berapa orang yang meninggal, orang Islam, hanya segelintir saja yang dapat ucap kalimat. के साथ आ गए। वो फरमाते हैं मैं तखमीनन कहते हैं 100 बंदों को मैंने कलीमे की तलकीन कराई, उसमें से सिर्फ 2 बंदे कलीमा पढ़ सके। Dia beritahu lebih kurang 100 orang saya pernah ucapkan talqin pada telinga mereka waktu mereka sakaratul maut, tapi hanya 2 orang saja yang dapat ucap kalimat. इतनी मामूली बात नहीं है कलीमा। Ini bukan perkara biasa, bukan perkara kecil. ये मेहनत मेरे अजीज भाइयों को, ये इस्तिमा, Inilah usaha, inilah istimewa yang kita dirikan untuk apa? Supaya setiap orang yang beriman fikir atas perkara ini. मौत के वक्त मेरे ज़बान से कलीमा आसानी से Bagaimana ketika maut telah datang dengan mudah saya dapat ucap kalimat. नाज़िल हो गया। बहुत कम लोग हैं ऐसे हमें खबर मिलती है जब ये दुनिया से गए कलीमा पढ़कर Sangat sedikit kita dengar cerita, kita dengar kabar orang yang dapat ucap kalimat ketika mereka खबर हमें पहुंच रही ये कलीमा पढ़ के मौत आ गई। जब मेहनत छूटी ईमान वाले के अंदर उसकी ख्वाहिश भी निकल गई, दुआ भी नहीं, अल्लाह मौत के साथ ईमान के साथ कलीमा नसीब, ईमान के साथ मौत नसीब। Orang yang tidak ada fikir kerisauan, maka dia tidak akan doa, ya Allah, apabila saya mati dalam keadaan beriman dalam keadaan dapat ucap kalimat. अपनी आखिरत की तैयारी के लिए Untuk apa kita datang di dunia ini? Untuk kita buat persiapan जिस चीज में लगता है dalam वो दिल akhirat. ऑब्जर्व करता है। दिल की मिसाल ऐसी है जैसे स्पंज को दूध में डालेंगे तो क्या लेगा वो? Kehidupan kita ini seperti apa? Seperti sponge. दूध ऑब्जर्व करेंगे। Nah, untuk kita bawa pinggan itu, पानी में डालेंगे kalau kita letak dalam susu, kita perah keluar susu. Kita letak dalam air, kita perah keluar air. पानी होता पानी। हम जिस चीज में लगे हुए हैं Apa yang kita letakkan dalam diri kita itu yang akan keluar. अंदर ले रहा है। दुकान में है तो दुकान को ले रहा है, Kita मकान में है तो letakkan मकान को ले रहा है, kedai dalam hati kita, पैसे itu yang मांग akan में तो keluar. पैसे मांग को ले रहा है, डिग्री Kita में letakkan डिग्री को ले toko रहा है। dalam hati kita, itu yang akan keluar nanti. हम बड़ों से बार बार सुना है दिल्ली में एक ताजिर था, दिल्ली में एक ताजिर था, cerita satu orang कुड़ियों का peniaga di व्यापार Delhi. करता था। जर्मन जापान चाराने उसका व्यापार Dia jual barang, dia cakap ini क्या व्यापार करता था? Ikan. जर्मन की कुड़ी चाराने, जापान की कुड़ी चाराने, empat anak, 4 sen, tahu? चाराने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। जब मौत का हाल वक्त आया तो जबान से ही निकला जर्मन जापान चाराने। Nah, orang ini waktu dia mau mati itulah yang कितनी disebut अफसोस, sekitar ini berapa sen, berapa rupiah, berapa anak. ईमान वाले की मौत जर्मन जापान चारने से आए, ईमान वाले की मौत कलीमे के साथ आए। Orang yang beriman dia mati dalam keadaan दूसरों tidak ने dia ucap अपने kalimat. इलाके का अपने हल्के का किस्सा सुना रहा हूँ। 75 साल की उम्र में तबलीग में लगे,
Saya cerita saya di tempatan saya di kampung saya. Satu orang tua umurnya 75 tahun. Seperti datuk saya sendiri. लंबा किस्सा है ceritanya panjang. Dia pun ikutlah keluar jemaah 3 hari. Pusat atas iman. Kebetulan ada masyarakat bulanan. Lepas subuh saya bayar subuh. Dia pun bagi nama untuk kelapa bulan. Kemudian pada hari Ahad masyarakat bulanan. Lepas sholat subuh. Kemudian dia terasa sakit. Anak dia pun datang bawa di hospital. Lebih kurang 3 km daripada tempat itu. Mereka lepas dia di atas katil. Terus dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. जाने के लिए 10-15 मिनट लगेंगे उधर से dalam perjalanan lebih kurang 15 हॉस्पिटल menit करीब गया और रूह निकल गई hampir sampai di hospital ruh dia pun telah keluar ला इलाहा इल्लल्लाह dalam keadaan ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. कितनी खुश कितना खुद नसीब बंदा begitu bertuahnya dia begitu bernasib baiknya dia. Ini adalah berkat daripada usaha agama. Inilah maksud kita, inilah tujuan kita. अपने ईमान की फिक्र पैदा होगा. Kita mau setiap orang ada fikir atas iman. Setiap orang ada fikir atas diri macam mana iman dia. Kita mau supaya hati kita mempunyai taluk yang betul kepada Allah. जो बंदा अपना और अपना रब का ताल्लुक सही कर लेता है अल्लाह उसके और बंदे का ताल्लुक अल्लाह सही कर देते हैं. Allahu Akbar. Siapa yang berusaha untuk betulkan hubungan hamba dengan Allah, Allah sendiri akan betulkan hubungannya dengan hamba. हमारा ताल्लुक अल्लाह से सही हो जाए. Kita mau betulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. जब अल्लाह से ताल्लुक सही हो जाएगा, घर वालों का ताल्लुक अल्लाह सही कर देंगे, कारोबार का, apabila kita betulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan betulkan semua pekerjaan kita, perniagaan kita, rumah tangga kita. Semua keluar kita Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki, Allah Subhanahu wa taala akan betulkan. La ilaha illallah. हमारा काम क्या है? हमारे जिंदगी का apa kerja kita, apa maksud kehidupan अल्लाह kita. से सही हो जाए. Macam mana betul hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. घर में लाइट है, जल नहीं रहा है, उजाला नहीं दे रहा है, फैन चल नहीं रही है, एसी नहीं चल रही है, Di rumah kita tidak ada listrik, tidak ada lampu, वॉशिंग tidak मशीन वो भी नहीं चल ada रही mesin है, basuh, tidak boleh pakai. मिक्सी नहीं चल रही है, Ada AC नहीं tidak नहीं boleh सब pakai. नहीं है. रिपोर्ट किया है, लेकिन चल नहीं रहा है. क्या प्रॉब्लम? Apa masalahnya? हाँ, इसका मेन पावर कट हुआ है. Sebab dia punya main power, तार rosak. वो हाँ कटा हुआ है, तार कटा हुआ है. Dia punya ataupun kabel dia कितना putus. कीमती लाइट ना हो, कितना ही कीमती एसी ना हो, फ्रिज ना हो, Walaupun begitu mahal AC-nya, lampunya, सिर्फ वो वायर को कनेक्शन बराबर कर देंगे, ऑटोमेटिक सब चलेगा. otomatis semua. अगर वो वायर को सही Tapi किए kalau wire चाहे putus, किसी भी kabelnya कोशिश कर putus, ले, इसके मसले हल नहीं होंगे. sampai bila pun ना masalah लाइट tidak akan चलने का ना फैन selesai. चलने का, ना एसी चलने का ना फ्रिज चलने का. AC pun tidak लेकिन bisa पावर कट हुआ है. pakai, मेरे अजीज भाई lampu pun tidak जब bisa तक मेरा menyala. ताल्लुक अल्लाह से सही नहीं होगा, चाहे Apabila कभी takluk हाथ kita, में hubungan मार ले, kita dengan Allah पुलिस SWT नहीं लगा दे, हमारी tidak दुनिया betul, बदलेगी. maka segala kalanya माल आ जाएगा, jadi susah. लेकिन इज्जत नहीं होगी, Untuk kehidupan dunia pun jadi susah, kehidupan akhirat pun jadi susah. दिलों का सुकून नहीं होगा, Tidak ada ketenangan dalam hati. हुकूमत होगी इज्जत नहीं होगी, हथियार होंगे अमन नहीं होगा, Ada senjata, ada tentera, tapi tidak ada keamanan. माल होगा हमारी जरूरतें पूरी नहीं होगी. Keperluannya tidak akan sempurna. इसलिए अल्लाह का ताल्लुक सही नहीं हो. Bagaimana hubungan kita taluk kita tidak betul pada Allah. जब अल्लाह का ताल्लुक सही हो जाएगा, Apabila sudah betul hubungan dengan Allah, फज़ाइल सदक़ात में लिखते हैं, जब अल्लाह के फज़ाइल का यकीन सही हो जाएगा, kita boleh baca di dalam kitab Fadilat Sedekah. बगैर खेती के रोटी खाए. रोटी खाने के लिए खेती की जरूरत नहीं है, फल खाने के लिए Untuk makan roti tidak perlu, untuk berladang, untuk bersawah, untuk अल्लाह खिलाएंगे. menanam segala-galanya. Allah SWT जब berikan अल्लाह segala-galanya. का ताल्लुक से अल्लाह का खजाने का यकीन आता है, Apabila betul hubungan kita dengan Allah SWT, Allah SWT akan buka pintu khazanah langit Allah हमारा दिल का SWT. यकीन अल्लाह से सही होना. इसी फज़ाइल सदक़ात में लिखते हैं, एक अल्लाह वाले जा रहे थे रास्ते में,
Dalam sedekah ada tulis satu kisah satu orang wali Allah di berjalan. पानी की जरूरत पड़ी, Dia perlukan कुआं air. था, कुएं के पास गए, Dia कुआं है, पानी pergi नीचे है, telaga. और पानी पीने के लिए क्या चाहिए अभी? Sekarang mau minum air, apa yang perlu? क्या चाहिए? Perlu apa? बाल्टी और रस्सी चाहिए। Baldi kah ataupun tali? तो थोड़ी देर रुक गए, कोई आएगा पानी लेने के लिए, बाल्टी रस्सी Dia लेकर tunggu. आएगा, अभी पी लेंगे। Ada orang akan थोड़ी bawa देर baldi में dengan tali. हिरन आए, क्या है? हिरन Tiba-tiba datang seekor कुएं में rusa, सर डाला, payau. पानी नीचे है और ऊपर देखा, Rusa itu tengok dalam pergi, kemudian dia tengok di langit. बड़ा ताजुब हुआ अल्लाह वालों को। आवाज आई, भाई आपका यकीन तो रस्सी और डोल पर था, इस हिरन का यकीन अपने पालनहार पर। Apabila rusa itu tengok langit, maka air telah naik, dia telah minum dan dia telah pergi. Maka wali Allah ini heran, macam mana ini rusa ada रस्सी beli चाहिए, डोल belum चाहिए, begitu senang. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu suara dari langit. क्या चाहिए? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada dia, rusa ini dia yakin kepada saya, kamu yakin kepada tali dan baldi. अल्लाह का ताल्लुक सही हो जाएगा। ताल्लुक का मतलब यकीन का सही होना, ताल्लुक का मतलब Maksud अल्लाह का यकीन सही होना। taluk yaitu kita mau ada keyakinan yang betul kepada Allah. कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में, Kejayaan dan kegagalan berada dalam genggaman Allah. वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी पे मेरा अजीज भाइयों, अल्लाह अपने कलाम पाक में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात को बयान करते हैं। Dalam Al-Quran Allah SWT ceritakan kisah-kisah para nabi. कुल्ला नकुस्सु मिन अंबाइ रुसुल इनसब्बिदा बिही फुआद। क्यों बयान करते हैं अंबिया के वाकया कि आपके दिल के अंदर सबात कदमी पैदा हो जाए। Untuk apa Allah SWT ceritakan kisah-kisah nabi dalam Al-Quran supaya orang yang baca dapat menambah keyakinannya dalam के वाकये को बयान फरमाता है। एक बार दो बार कई बार बयान फरमाता है। berapa kali Allah ulang Allah ceritakannya Al-Quran. पढ़ो सुनो, इसको बयान करना है, इसी को सुनना है। कब तक? कयामत तक, Sampai bila? Sampai hari यकीन kiamat. बन जाए। Untuk kita baca, करने kita वाली जात एक pendengarkan अल्लाह की, kisah-kisah para nabi. अल्लाह का ताल्लुक सही हो जाए। Supaya betul hubungan kita dengan Allah. मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम Nabi Musa निकले alaihissalam फिरौन से निकलकर कहाँ पहुंचे? रात का वक्त था, dia keluar waktu malam dengan anak istri dia. अपने कौम को लेकर निकले, निकलते Nabi निकलते Musa alaihissalam bawa kaum dia tengah malam Bani Israel. कुरान पढ़ेंगे हम बहुत से, उलमा का ताल्लुक बहुत जरूरी है। Sebab itu kita begitu penting ada hubungan dengan alim ulama. पालन पूरी हक तक फरमाया करते थे, उलमा हमारे सर के ताज, Maklumat paling perlu tahu ulama ini adalah seperti mahkota di atas kepala kita. क्या फरमाते थे? कान के सितारे हैं। उलमा के बगैर उम्मत नाबीना है। क्या फरमाते थे? Ulama ini seperti bintang-bintang di langit waktu malam. हमारे रहबर है Tanpa ulama kita akan salah jalan. हमारा ताल्लुक उलमा से हो। Suatulah kita mau ada ta'alluq, ada hubungan dengan जैसे ulama. हमारे पास डॉक्टर का नंबर है, इंजीनियर का नंबर है, Seperti hari ini kita ada nomor dokter, engineer. हमारे पास एक नंबर मुफ्ती साहब का भी होना है। Tapi satu mufti sab punya nomor हम कहते हैं हमारे पास मुफ्ती गूगल साहब है। kita ada satu nomor mufti हमारे Google. पास कौन है? Itu semua kita ada. गूगल साहब। फौरन लगा दे मुफ्ती गूगल साहब। Apa yang kita ada masalah terus kita tanya mufti Google. अल्लाह हकीम है, अल्लाह अलीम है, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui segala आएगा, मुफ्ती गूगल साहब आएंगे। इसलिए अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ये नहीं फरमाया अहलुल इल्म, अहलुल ज़िक्र फरमाया। Allah SWT tidak beritahu kamu मतलब berhubungan dengan अमल orang करने वाला भी yang हो। berilmu, tidak Allah SWT गूगल beritahu साहब कहाँ से dengan अमल orang yang करेंगे? berzikir. अमल करेंगे मुफ्ती गूगल साहब। Allah Akbar. Kita tanya yang mufti Google itu dia ada amalan kah? इल्म वालों से पूछो, अमल करने वालों से पूछो। Kita tanya ahli ilmu atau ahli amal. उलमा के साथ रहेंगे तो इल्म हासिल होगा। Kita duduk dengan ahli ulama maka kita akan dapat ilmu. इतर के दुकान में जाएंगे, बैठेंगे, खरीदे या ना खरीदे, खुशबू तो जरूर आएगी हमारे पास। Kita duduk di kedai toko उलमा की wangi, सोबत में रहेंगे, sama ada kita beli atau tidak beli, pasti kita akan dapat wangian. लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत। मेरे अजीज भाई बुजुर्गों, मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते पीछे फिरौन, Nabi Musa alaihissalam kita telah berjalan मूसा अलैहिस्सलाम bersama-sama dengan kaum Bani Israel, di belakang dikejar oleh Firaun dengan tentaranya. बचने का कोई रास्ता नहीं, Tidak ada satu jalan untuk mereka dapat कोई selamat. रास्ता नहीं।
मूसा अलैहिस्सलाम ये कौन है? फरमाया मूसा इन्ना लमुद्रकून। Kaum Nabi Musa bagi tahu wahai Musa, अच्छी तरह अटक गए, फंस ha? गए। Kau telah bawa kami मुद्रकून चारों kepada तरफ से कोई रास्ता नहीं, kebinasaan. Ha? चारों तरफ से Kami sudah terperangkap daripada empat penjuru. इन्ना लमुद्रकून, मच्छ की तरह फंस गए, हमें तो फंसा दिया तुम। Ha? Kau telah bawa kami kepada kebinasaan. और सामने समंदर, पीछे फिरौन। Di depan lautan, di belakang Fir'aun dengan और मूसा tentaranya. अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? Di kiri kanan gunung ganang. क्या फरमाया? Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Tidak. इन्ना मैया रब्बी, Sungguhnya Tuhan bersama aku. मेरा अजीज भाई बुजुर्गों, समंदर, उसमें पानी, रास्ते निकले, कोई अकल Kalau kita gunakan akal pikiran, betul kalau boleh lari daripada lautan. Boleh adakah jalan untuk keluar? पानी को अल्लाह ने दीवार बना दिया। Allah SWT telah jadikan air lautan menjadi dinding. मेरा अजीज भाई लोगों, ये यकीन की अल्फाज के अंदर अल्लाह ऐसी ताकत रखे, समंदर के पानी को दीवार बना दिया। Inilah perkataan yang mendatangkan keyakinan. Allah SWT jadikan air menjadi dinding-dinding di dalam lautan. हर ईमान वाले के साथ अल्लाह की कुदरत साथ है। Inilah Allah Subhanahu wa taala janji orang yang beriman Allah SWT akan senantiasa dengan baik bersama dengan mereka sampai hari kiamat. अल्लाह की कुदरत में कोई कमी नहीं है। Dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun kekurangan. ईमान वाले का यकीन का कमजोरी है। Ini adalah asbab daripada kelemahan iman orang mukmin. जिसका दिल का है अल्लाह, उसके साथ अल्लाह है। Siapa yang dalam hati dia ada keyakinan yang betul, maka Allah SWT sama dengan mereka. चलना फिरना नहीं, हर ईमान वाला दिल के अंदर मेहनत करके यकीन को उतारे, अल्लाह मेरे साथ है। Ini tuan-tuan kita अल्लाह मेरे mengucapkan साथ है। macam mana keyakinan yang betul. Karena asingkan Allah bersama-sama dengan saya. Allah bersama-sama जब dengan तक saya. तार नहीं लगाएंगे, जब तक नहीं चलेगा नहीं, चैन चलेगी नहीं, हमारे मसले हल नहीं होंगे, हमारा ताल्लुक अल्लाह से सही होना। Bagaimana kita tidak ada hubungan dengan Allah, begitu masalah kita tidak akan मेरे selesai. अजीज भाई बुजुर्गों, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने रास्ते खोल दिए। क्यों अल्लाह Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kepada Nabi Musa. हमें तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं। Mereka adalah orang-orang yang betul-betul yakin mereka betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. घंटे-घंटे क्या बोलते हैं, चैटिंग, क्या बोलते हैं, Berjam-jam kita boleh chatting. कुरान को देखना इबादत, कुरान को पढ़ना इबादत, कुरान को उठाना Baca इबादत, Quran adalah ibadat. Angkat तीन Al-Quran चीजें ऐसे ibadat. हैं, Tentu Al-Quran juga देखना ibadat. इबादत है। तीन चीजें ऐसे हैं, Tiga सिर्फ perkara देखना boleh jadi इबादत, ibadat. Lihat Al-Quran pun अल्लाह के ibadat. घर को देखते रहना इबादत है, सवाब है। Lihat rumah Allah pun ibadat. उम्रे में गए, हज में गए, Pergi umrah, pergi haji, tengok Baitullah pun तवाफ ibadat. कर लिए, थोड़ा पैर में दर्द है, बैठ गए, अल्लाह के घर को देखते रहो, सवाब मिलता रहेगा। Duduk di rumah Allah juga dapat pahala. दूसरा क्या है, अपने माँ बाप को देखो, Lihat kepada ibu bapa dengan gembira pun dapat pahala. माँ बाप को देखना इबादत, Ini pun dikira ibadat. मोहब्बत भरी निगाह से देखना इबादत। Tengok ibu bapa dengan kasih sayang pun ibadat. Ini pun dikira कितना pahala. बड़ा सवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि Berapa besar daripada pahalanya? जो अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाह से देखे, Siapa yang lihat ibu bapa dengan kasih sayang, हज और मकबूल, हज मकबूल का सवाब Allah SWT akan bagi dia pahala ganjaran haji dan umrah yang मामूली mabrur. बात है। Ini bukan perkara biasa, हज मकबूल का सवाब, bukan perkara kecil. Pahala haji dan umrah. साहबी ने फरमाया, एक साहबी या रसूलुल्लाह 2 बार देखे, Sahabatnya yang Rasulullah kalau 2 kali saya lihat, 2 kali pahala haji dan umrah. आज नौजवान लड़का माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा है, hari माँ बाप ini का फरमान remaja-remaja नहीं है, mereka इसकी tidak वजह mau माँ khidmat बाप pada ibu bapa. ने नहीं बताया कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है। Mereka tidak paham apakah darjat ibu bapa di sisi mereka. मेरे अजीज भाई बुजुर्गों, अल्लाह ने बड़ा 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 सख्ती से वालिदैन के बारे में इकराम का अल्लाह कुरान Allah tegur begitu keras sekali dalam Al-Quran mengenai azab kepada ibu bapa. उफ नहीं कहना, उफ Untuk kita ucap kepada ibu bapa pun tidak boleh. बोलते ना ये उफ नहीं। Kita ucap pada ibu इसका bapa pun tidak तर्जुमा boleh. हमारे बड़े आलिम थे मौलाना खलील अहमद साहब किरनूरी, Satu orang बड़े ulama आलिम थे, besar Maulana वो Khalil. कहते थे अभी किताब रोजे की हालत में इंतकाल हुआ, आशुरा का रोजा, असर के बाद बात करें इफ्तार के लिए, और मैं जगा दो, लेटे और इफ्तार में जगाए तो रूह निकल गई, असर में बात करके असर बाद थोड़ा लेटे, ये होती है मौत मेरे अजीज भाई बहन, ये होती है जिंदगी। ऐसी जिंदगी गुजार के जाए कि अल्लाह हमसे राजी हो, इस साल में मेरी मौत आए,
Kita mau setiap kehidupan Allah kita मेरे से Allah खुश SWT हो, reda kepada kita. सजदे की हालत में हो, अल्लाह मुझे मौत दे दे, Kita mau ये मेहनत का मकसद है। Allah SWT ambil nyawa kita हमारे dalam साथ ही keadaan शमसुद्दीन Allah साहब, reda pada kita. हमारे Ketika हमारे kita हल्के sujud, के ketika sholat, ketika चिल्ले kita जमात beramal की जमात में kebaikan, निकले, kita जमात की वसूली हो रही थी, जमात के सवेरे 10 बजे डाक लेकर आ गए, मगरिब में दूसरे मस्जिद में गश्त के लिए गए, असर बाद गश्त हुआ, मगरिब की नमाज में सजदे में रो निकल गई। ada satu orang kali jemaah ये होती ना मौत, keluar ये jemaah जिंदगी है ना असल। pergi gas sebelum क्या asar. लेकर गए, हम क्या Lepas लेकर गए, maghrib, bila solat maghrib, Dia sendiri. dia mati dalam sujud. Allah. तो मेरा अजीज भाई बहनों में क्या कहना था, Jadi tuan-tuan itu हाँ वो मौलाना फरमाते थे, इसका तर्जुमा ये है, कभी कभी आदमी बेजारी जाहिर करने क्या करता, बात समझ में नहीं आई, इतने की भी इजाजत नहीं, अपने माँ बाप के पास, माँ बाप के आगे इतना करने की भी इजाजत नहीं, kita kena hormat dari ibu bapa. बेजारी जाहिर करे, Ada perkara yang kita kena जबान से izin कोई अल्फाज dari ibu निकलना तो bapa. बड़ा गुनाह है, माँ बाप के पास, माँ बाप के आगे, Kita meninggikan suara di depan ibu माँ बाप के bapa आगे itu dosa. बाप के आगे चलना नहीं, बाप के आगे बैठना नहीं, बाप की आवाज से हमारी आवाज बनना नहीं, Tidak boleh Islam की तालीम mendahului है, ibu bapa kita, tidak boleh इस्लाम meninggikan, की तालीम है, membentak suara हमारे depan हजरत ibu की bapa. नसीहत है, Ini जो adalah उस्ताद की dosa. दुआ लेगा अल्लाह उसके दीन को आबाद करेंगे, दीन की खुदमत ज्यादा लेंगे, जो माँ बाप की दुआ लेगा अल्लाह उसको दुनिया में खुश व खुर्रम रखेगा। Siapa yang dapat doa daripada ibu bapanya, maka Allah SWT akan bagi हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने, क्या kekayaan, बने, ketenangan kepada देने वाले बने, ऊपर का हाथ बने, नीचे का हाथ ना बने, ऐसा ही है ना, सबका यही इरादा है ना, कुछ बड़ा करने का नहीं, सिर्फ माँ बाप के दिल को खुश कर दो, अल्लाह आपको देने वाला बनाएगा, कभी लेने वाला नहीं बनाएगा। Siapa yang तजुर्बे की बात mau Tadurbe ki orang baat. yang tangan ये di मेहनत atas, से ही कहा जाता, माँ बाप के लिए अच्छा बेटा मिल जाए, शोहर के लिए अच्छी बीवी मिल जाए, बीवी के लिए अच्छा शोहर मिल जाए, मस्जिद के लिए इमाम के लिए अच्छा मुसल्ली मिल जाए, मोहल्ले के लिए अच्छी शादी मिल जाए, मेरे अजीज भाइयों, Allah SWT akan bagi kemudahan एक kepada अच्छी सोसाइटी, एक मुआशरा बन जाए, ये मेहनत का मकसद है। ये तो हमारा अल्फाबेट है, ये एबीसीडी पढ़ रहे हैं 3 दिन छिल्ले की, हम तो ये चाहते हैं हर अल्लाह का बंदा अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए, अल्लाह की इताअत में आ जाए, अपनी जिंदगी में अल्लाह का दीन लेकर चले, दूसरों को रहबर बने। Tentuan maksud kita ये हमारी bukan मेहनत का मकसद है, setiap orang, mereka yang सिर्फ बयान terpelajar, करना, atau बयान tidak सुनना terpelajar, हमारा semua मकसद mereka नहीं menjadi कि orang हमारी yang जिंदगी बदल जाए, ada hubungan dengan Allah हम Subhanahu Wa अल्लाह Taala. को राजी करने वाले बन जाए, Jadi ईमान orang yang वाला dapat जीता है मरता है keridhaan अल्लाह Allah के Subhanahu Wa लिए, Taala. इन्ना सलाती व नुसकी व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जानी इबादत, मानी इबादत, यहाँ तक अल्लाह ने फरमाया ईमान व मेरा जीना मेरा मरना अल्लाह के लिए, Orang हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम अल्लाह के लिए जी रहे, maksud अल्लाह के लिए dalam मरे। sholat kita baca doa iftitah, ya Allah, Jadi Allah kehidupanku hanya untuk Engkau, पूरी mati दुनिया aku मिल juga गई, hanya untuk अगर Engkau. अल्लाह नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, अगर Kalau अल्लाह aku मिल tidak गया तो dapat सब कुछ apa-apa मिल pun ya Allah, tidak apa-apa, asalkan aku दिल dapat के अंदर keridhaan तलब हो कि मुझे अल्लाह मिल जाए, मैं Aku अल्लाह mau वाला बना। dapatkan Allah itu सबको saja. ख्वाहिश होती है उसको मालदार बनना है नहीं ख्वाहिश बोलो, मालदार बनना ख्वाहिश नहीं है, इसको नहीं है ख्वाहिश, Untuk memenuhkan nafsu satu orang, इसी तरह मेरे अजीज भाइयों हमें ख्वाहिश bukan है मैं dengan दीनदार बनना, kekayaan, जैसे tapi मालदार untuk बनने की ख्वाहिश है, memuaskan hati उसको satu orang दीनदार itu, बनना है, dapatkan keridhaan Allah उसको SWT. दीनदार बनना है, अल्लाह वाला बनना है, उसको अल्लाह चाहिए, Kita mau jadikan diri kita हमेशा semua रहना orang अल्लाह के साथ, हो वमा orang तुम yang ऐनमा कुंतुम, mendapat keridhaan Allah, हो orang वमा yang तुम, कुरान कहता bawa है perintah-perintah Allah. आप जहाँ भी हो अल्लाह आपके साथ है, आप जहाँ भी हो अल्लाह तो शहर से Kita mau भी खड़े ingat di हैं, mana saja kita pergi, Allah bersama dengan अभी kita. अल्लाह हमारे साथ है, हमें हमेशा अल्लाह के साथ रहना है, खबर में जाएंगे तो अल्लाह हमारे साथ है, Allah SWT bersama dengan kita. वो मा तुम ऐनमा कुंतुम, हमें हमेशा रहना है अल्लाह के साथ, जिसके साथ रहना है उसको भूल गए, जिनको छोड़ना है उनसे दिल लगा लिए, ये कितना बड़ा जुल्म है, जिनके साथ दिल लगाए हुए हैं एक दिन इनसे कट जाएगा, हमारा ताल्लुक कनेक्शन कट जाएगा, किसके साथ हमेशा रहना है, अल्लाह के साथ रहना है, उस अल्लाह को भूलकर जिंदगी गुजारना, इससे बड़ी का नुकसान की क्या बात, Apalagi perkara yang lebih zalim ये इस्तीमा से daripada मेरे से चाह जाता kita है, melupakan हर Allah ईमान वाले के Subhanahu Wa अंदर Taala. ख्वाहिश हो जाए मुझे अल्लाह मिले, Allah bagi segala-galanya pada kita, tapi kita lupa pada Allah.
तो मेरे अजीज बुजुर्गों, इस मेहनत का मकसद है मेरा यकीन सही हो जाए, एक अल्लाह करने वाले, tujuan usaha kita buat supaya macam mana kita sentiasa ingat kepada Allah. एक अल्लाह करने वाले, Allah lah yang segala-galanya. नमरूद 4 लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया पर हुकूमत की। Ada 4 orang yang Allah bagi kerajaan seluruh dunia pada mereka. 2 मुसलमान हैं, 2 orang Islam, 2 yang bukan Islam. उसमें नमरूद था, 2 yang tidak beriman, yang itulah Namrud. नबी की बात नहीं माना, Dia tidak mau dengar की बात को dakwah Nabi. अल्लाह ढील देते हैं, अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह की एक आदत है, ढील देते हैं। जब पकड़ते हैं तो कुछ रास्ता नहीं होता बचने। Allah bagi peluang kepada dia. Apabila sudah Allah SWT उनको ढील दी, अल्लाह ने बहुत ढील दी, फिर masukkan पकड़ा, dia dalam ऐसे perangkap, Allah tangkap पकड़ा, dia. आज तक इबरत बना दी। मिस्र में आज भी उसका जनाजा पड़ा हुआ है। ये बोला था लिमन यख्शा, अल्लाह से डरने वालों के लिए इबरत है। Orang yang takut pada Allah menjadi contoh kepada kita. अल्लाह के नबी के बात को नहीं माना, Orang yang tidak पूरी दुनिया का बादशाह, dengar apa yang dikatakan oleh Nabi, अल्लाह ने क्या किया, seperti Namrud. Dia adalah raja seluruh dunia. नमरूद पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह है। Kerajaan seluruh dunia dia bawa pemerintahan. दूसरा बादशाह चाहिए ना, वही पावर वाला चाहिए, पावर वाला चाहिए ना। Allah SWT beritahu, kalau satu orang dibagi kerajaan satu dunia, dia mau lagi. Kalau ada lagi lain, dia mau lagi. 65 से नहीं लड़ा, 1-2 किलो 3 किलो का फर्क होगा। जैसे पावर वाला आएगा तो बेइंसाफी होगी, पावर वाले को खत्म करने वही पावर वाला। नमरूद पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, उस बादशाह को खत्म करना है। पूरी दुनिया पर जिसकी हुकूमत हो, तो अल्लाह ऐसे बादशाह को लेकर आए जिसकी 2 दुनिया पर हुकूमत हो, वही तो खत्म करेगा उसको। Dapat kerjaan satu लेकिन अल्लाह dunia. किसको लेकर आया, Dia mau lagi kerjaan lagi. किसको लेकर आया, किसको लेकर आया, नमरूद को खत्म करने के लिए। मत छोड़, Untuk binasakan kerajaan Namrud, Allah SWT hantar apa? Allah SWT hanya hantar nyamuk. अल्लाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह को खत्म करने के लिए Untuk hancurkan kerajaan yang begitu besar, kerajaan seluruh dunia. अल्लाह खत्म करने का इरादा करेंगे तो Apabila Allah SWT mau untuk अल्लाह ने मच्छर को भेजा, hancurkan satu kerajaan, mudah saja bagi Allah. Allah hantar seekor nyamuk saja. क़यामत तक आने वाले हर ईमान वाले को इससे सबक है कि अल्लाह की Inilah कुदरत को समझे, pelajaran अल्लाह की ताकत kepada को orang समझे, yang beriman अल्लाह seluruh कितने dunia बड़े sampai hari ताकत वाले kiamat. हैं। Allah lah yang maha kuasa. सब समझ में आ गया, माल की ताकत है मालूम है, पैसे की ताकत मालूम है, पैसे का पावर मालूम है, माल का पावर मालूम है, Harta benda, क्या बोलते हैं हुकूमत का पावर मालूम ada है। kuasa, apa-apa kerajaan kita ada kuasa. अगर हमें पता नहीं तो अल्लाह का पावर पता नहीं। Kalau kita tidak kenal perkara ini, maka kita tidak कि kenal अल्लाह कौन है, अल्लाह kekuasaan कैसी बड़ी Allah. कुदरत वाले हैं। Siapa Allah? Allah yang तो memberi मेरे अजीज kekuasaan बुजुर्गों, हम terhadap दिल पर मेहनत कर segala-galanya. एक अल्लाह से होने वाले यकीन को दिल के अंदर बनाए। Kita mau letakkan हमारी hati kita hanya Allah yang beri buat सल्लल्लाहु अलैहि sesuatu. वसल्लम की सुन्नतों पर आए। अल्लाह को पाने का रास्ता वो नबी का रास्ता है। Jalan yang Allah SWT suka itu jalan para nabi. अल्लाह फरमाते हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह से प्यार है, अल्लाह से मोहब्बत है, Kalau kamu mau dikasih oleh अल्लाह Allah, से प्यार करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो। अल्लाह फरमाते हैं, आप कह दिए नबी फत्तबीऊनी, मेरी इत्तिबा करो। kamu आप katakanlah क्या अल्लाह से wahai मोहब्बत para करोगे, nabiku, नबी की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह ikutlah. आपसे मोहब्बत करेगा। Kasih aku ikutlah Nabi ya. युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। Allah SWT akan kasih kepada kamu. अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए सुन्नत से कोई रास्ता नहीं। Untuk kita dapat kasih sayang daripada Allah, tidak ada lagi jalan lain. सुन्नत में हिदायत है, सुन्नत में नूर है, Dalam sunnah Nabi ada Sunnat में आसानी hidayat, है। ada nur. सुन्नत फितरत है, जिंदगी गुजारने का तरीके का नाम सुन्नत है। Untuk kita सुन्नत bawa करने के लिए, सुन्नत छोड़ने के लिए नहीं है, sunnah Sunnat adalah itu untuk karena kita kalian. amalkan, bukan untuk kita tinggalkan. छोड़ने के लिए नहीं। साहबा के यहाँ सुन्नत का बड़ा मकाम होता था। Sahabat paham betapa besar derajat dalam एक mengamalkan सहाबी sunnah. दस्तरखान में बैठे हुए हैं, Satu orang sahabat duduk mau makan dengan safra. दस्तरखान में बैठे हुए हैं। सुन्नत क्या है,
दस्तरखान बिछाकर खाएं। Sunnahnya apa? Letakkan safra. दस्तरखान बिछाकर खाएं। Bila mau makan, letakkan बिस्मिल्लाह safra. बोलकर खाएं। Inilah कोई sunnah. दाना नीचे गिर गया, Kalau ada makanan yang terjatuh di atas साफ safra, कर खाएं। ambil dan makan. तो कुछ रोटी का टुकड़ा या दाना नीचे गिरा, Satu orang sahabat rotinya, serpihan roti jatuh di atas safra. जो पास में जो बैठे हुए थे उन्होंने Di depan mereka, क्या करते हो, बड़े बड़े वीआईपी लोग बैठे हुए, orang-orang VIP, बड़े बड़े खवास लोग बैठे हुए, orang khawas, गिरा orang-orang हुआ है, उसको उठा कर डालेंगे आप। sahabat telah ambil tadi roti, dia telah makan. सहाबी को बीपी चढ़ गया, Orang yang di sebelahnya telah bagi syarat, jangan buat begitu. क्या कह रहे हो? Kalau tadi begitu apa yang kamu cakap? अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, Adakah aku akan tinggalkan अतरुकु sunnah सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, kekasih aku ये बेवकूफों मिलेंगे मेरे नबी की सुन्नत छोड़ दो। di depan orang-orang yang bodoh ini? नबी की सुन्नत पर अमल करना नहीं, बल्कि नबी के सुन्नत पर मोहब्बत होना चाहिए। Sahabat Amal mereka karena amal amal sunnah sejarah Nabi Muhammad होना karena चाहिए। mereka begitu cinta kepada Nabi. एक सुन्नत पर मोहब्बत पैदा करना है, Kita juga mau सुन्नत में हिदायत है। lahirkan kecintaan kepada हमारे setiap दावत sunnah. की मुबारक मेहनत का मकसद ये हियाए सुन्नत है। Ini juga salah Ya, satu sunnah. maksud daripada tujuan Mari kita usaha ini tahu. supaya datang kecintaan kepada हजरत setiap मौलाना sunnah. इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे, नासाज थे, उठकर बैठना नहीं होता था। हजरत के पास एक जमात तशरीफ लाई, खवास की जमात, आकर पूछने लगे, हजरत आप ये मेहनत से क्या चाहते हैं? Satu orang tanya Maulana Ilyas, wahai चिल्ला Maulana, तीन चिल्ला apa तीन yang दिन kamu निकलो daripada usaha निकलो, ini? आवाज लगा Kamu रहे, orang क्या keluar मकसद 40 क्या है? hari per bulan क्या kalau चाहते इस मेहनत से? apa kamu daripada ini usaha? उलमा फरमाते उस नासाजी की हालत में भी, कमजोरी की हालत में भी हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए, उठकर बैठे और कहने लगे, या जमी मा जा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ इस उम्मत को देकर गए उसको जिंदा Sunnah करना Nabi हमारे काम dan का मकसद। tahap agama ini kembali di zaman Nabi SAW wafat. हमारी जिंदगी सुन्नतों पर आ जाए। Kita mau supaya मन seluruh sunnah तमस्सक datang dalam kehidupan बिसुन्नती kita. इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु नियति शहीद औ कमा क़ाल Sabda Nabi SAW, एक yang सुन्नत को mengamalkan मजबूती से sunnahku पकड़ेंगे, pada ketika अल्लाह zaman सब atau sampai शहीदों का umatku, स्वागत है। setiap satu एक sunnah रिवायत Allah आया, bagi अजरु 100 kepala शहीद, syahid. एक शहीद का अल्लाह सवाब अता करेगा। एक सुन्नत में हिदायत, Setiap satu sunnah ada पानी पीने hidayah. में साथ सुन्नत है, देख कर पीना, बैठ कर पीना, सीधे हाथ से पीना, बिस्मिल्लाह बोलकर Minum पीना, dengan tangan 3 सांस kanan, में dengan पीना, duduk, dengan baca bismillah. इसमें हिदायत है। Ini adalah sebuah hidayah. एक पेशेंट हॉस्पिटल में जमा हुआ, Satu orang बीमार sakit था, मुसलमान था, मुत्तबे dibawa सुन्नत ke था, hospital orang Islam. एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, पानी की जरूरत पड़ी, Dia begini जो नर्स थी mau minum air. वो पानी लेकर आए, Makanya setelah bawa हाफ हो गया, बिजली चले गई, air, पूरा tiba-tiba अंधेरा रात का वक्त, कुछ नजर नहीं आ रहा है, पानी लाए, tidak ada पीने के लिए listrik, लाकर maka gelap, पानी दी, तो maka मैं dia इसको tidak पानी minum को air. देखना है, देखकर पीना सुन्नत है, देखकर पीना Dia sudah tanya kenapa kamu tidak minum, dia beritahu sunnah minum. Pernah lihat tuh di dalam air. नहीं कुछ देख कर पियो। तो मोबाइल उठाया और ट्रांसलेट उठाया, उसमें देखा कि देखना सुन्नत है, और जब उसमें टॉर्च मारा तो छोटा सा चिपकली का बच्चा पड़ा। Allahu Akbar. Apabila nurse itu ambil lampu dan suluh daripada HP dia, ये suluh देखना था dalam कि gelas, उसको tengok अंदर ada हिदायत anak दी। kicap di dalam ये सुन्नत का gelas. Inilah kelebihan apabila kita ikut sunnah. और हिफाजत, सुन्नत में हिफाजत, सुन्नत Ada में हिदायत, dalam sunnah ada penjagaan Allah सुन्नत में SWT. नूर। Dalam sunnah ada cahaya, ada हमारी 24 keselamatan. घंटे की जिंदगी सुन्नत पर आ जाए। Betul kita mau bawa sunnah dalam kehidupan सवेरे kita. सोते वक्त, सवेरे रात को सोते वक्त, सवेरे Macam mana उठते वक्त, tidur, macam mana bangun. सोना भी सिखाया गया इस्लाम में, कैसे सोना है। Dalam Islam tidur pun diajar. बिस्मिका, या अल्लाह तेरा नाम लेकर सोता हूँ, Bismika mutu ahya. तेरा नाम लेकर जागता हूँ। Ya Allah, dengan namamu aku hidup अल्लाहुम्मा dan aku mati. बिस्मिका अमूतु व अहया। हम कहते हैं अल्लाहुम्मा बिल मोबाइली अमूतु बिल मोबाइली अहया। Innalillah, kita katakan dengan HP lah saya hidup, dengan HP lah saya mati. रात को सोते वक्त Dengan handphone saya hidup, dengan handphone saya mati. Sebelum मोबाइल tidur, चलता रहता है और सीने पे ऐसे रखे सो गए। lalu letakkan handphone di atas dada, kemudian kita tidur. अल्लाह अकबर। सोने को सिखाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि Nabi वसल्लम। ajar kita macam mana cara tidur. सोने से पहले वजू करो। Sebelum tidur ambil wudu. जो वजू के साथ सोता है उसकी रूह अल्लाह के अर्श में जाती है, सजदा कर कर। Siapa yang tidur dengan berwudu, roh dia akan naik
dan sujud di atas arasy Allah Subhanahu wa taala. आदमी 60 साल सो रहा है, 60 साल जी रहा है, तो 20 साल सो रहा है, 8 घंटे तो सोता है। अगर सुन्नत के मुताबिक सोगे तो आप 20 साल का सोना इबादत हो गए। Kalau kita tidur 20 tahun, maka tidur begitu saya tidak apa-apa, tapi kita tidur कितना आसान है। dengan ikut sunnah, kita dapat pahala 20 tahun beribadat kepada Allah. 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। चाहे सुबह से शाम तक कितनी भी मेहनत किए हो, बदन थका हुआ हो, फरमाया ये टैबलेट का काम करेगा, Allah. दवाई का काम करेगा। Kita paham dengan obat tak boleh buat kerja. Kita 33 paham मरतबा dengan सुभान baca अल्लाह, tasbih 33 Fatimah, मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 Subhanallah, मरतबा 34 अल्लाहु 33 अकबर। kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Sepanjang hari kita buat kerja daripada siang sampai petang, kita akan dapat kekuatan. करेंगे इंशाअल्लाह। Semua akan buat insyaallah. इंशाअल्लाह। घर से निकले, Keluar क्या dari कहना rumah, है? baca apa? क्या कहना? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु Baca Bismillah tawakkaltu. क्या इनाम है मालूम इस पर? Apa yang kita akan dapat? क्या इनाम है? सुभान अल्लाह। जब गजराना। बंदा कहता है घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, तो एक फरिश्ता ऐलान करता है कुफिलता कुफिलता कुफीता हुदीता। सुभान अल्लाह। 4 इनाम मिलते हैं, 4 ganjaran dia dapat. 4 इनाम। कुफिलता तेरी हिफाजत की गई, Kau akan dapat कुफीता keselamatan. तेरी किफायत जारी की गई, Kau akan dapat मुसीबत तेरी मदद की गई, हुदीता तेरी रहबरी की गई। सुभान अल्लाह। kamu akan bagi petunjuk अपने बच्चों को सिखाए, dengan घर से ajaran बाहर निकलता anak-anak है kita. बच्चा तो कहे मैं अल्लाह का नाम लेकर चलो, बिस्मिल्लाह Keluar तवक्कल dari अल्लाह। rumah, चाहे गाड़ी baca doa अपनी ini, सही sebut चलाए, nama Allah. आगे वाला भी तो सही चलाना चाहिए। हम अपने गाड़ी के भरोसे पर नहीं, अल्लाह के भरोसे पर चल रहे हैं। Kita bukan अल्लाह berharap में kepada चलाना है। kereta kita, mobil kita, kita berharap kepada Allah. Kita घर के bergantung अंदर kepada दाखिल होना Allah. है, सलाम करके दाखिल होना है। Masuk rumah dengan bagi चाहे salam. अपना घर हो, खटखटा कर दाखिल होना, कि पता चले घर वाले आ रहे हैं अंदर। Kita ketuk dulu pintu, Sunnat है। tutup pintu baru masuk. bagi हमारी salam. जिंदगी सुन्नत पर आ जाए, Kita mau bawa setiap kehidupan ये kita अल्लाह ke की sunnah. कुर्बत का जरिया बनेगा। Ini akan jadi हर asal kita अच्छा काम dapat बिस्मिल्लाह से कर, dekat हर kepada अच्छा काम, Allah. हर नेक काम बिस्मिल्लाह से। Setiap pekerjaan yang और baik सीधे kita हाथ baca से शुरू dengan करना। kita mulakan dengan कपड़ा bismillah. कुर्ता पहनना है, पहले सीधा हाथ, उतारना है पहले बायां हाथ, सुन्नत पर। Pakai baju dengan tangan kanan, buka baju dengan चप्पल tangan पहनना kiri. है पहले सीधा पैर, फिर बायां पैर, इस्तेजार हो जाए, सुन्नत पर। हमारे बच्चों को सिखाएं, Ajar anak-anak kita. मेरे अजीज बहादुरों, और हमारा मसला जो हल होगा वो हमारी नमाज के जरिए से। Semua masalah kita akan selesai dengan हमारे lantaran sholat. तमाम परेशानियों का हल अल्लाह नमाज करेगा। Semua kerisauan kita akan hilang dengan sholat. कोई भी मसला हो, 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह Pasti से लेने masalah वाले datang, बने, kita sholat 2 rakaat अल्लाह से minta लेने pada वाले Allah. बने। एक नौजवान Satu orang 10th remaja क्लास का, हमारे जिम्मेदार इंजीनियर बशीर साहब रहमतुल्लाह yang अलैह, satu kelas अल्लाह के dengan प्यारे हो orang गए। junior. वो जो है उनके जमात में 10th का स्टूडेंट, नौजवानों को 10 प्लस 1 प्लस 2 इनको अल्लाह के रास्ते में भेजे, इससे यकीन बनता है Mereka keluar कि dengan तरबियत Allah होती है, Ta'ala. तरबियत होने का वक्त होता है। डिग्री तो लेकर दे दी हमने, दुनिया बहुत दे दी, Dunia mereka terdapat gagalnya dapat degree. बड़ी पढ़ाई, बड़ी लंबे डिग्रियां, बड़े अच्छे ओहदे पर लेकर चले गए। माँ बाप का इंतकाल, बेटा बाहर खड़ा हुआ, Apabila ibu bapa mereka बाहर meninggal, मुल्क से आया हुआ है, बाहर anaknya बेटा berdiri di खड़ा हुआ luar. है, मेरे अंदर जनाजे की नमाज हो रही है, तो कहने लगा मेरा शू बड़ा कीमती है, अगर छोड़ो तो कोई लेकर चले जाएगा। बाप का जनाजा अंदर, बेटा बाहर, लेके डिग्री तो दिलाई मना नहीं है, लेकिन इसको दीन नहीं सिखाया। Jenazah bapaknya di dalam, orang sholat jenazah dia berdiri di luar. मेरे जनाजे पर जनाजे की नमाज पढ़ाने की, जनाजे की दुआ नहीं सिखाया अपने बच्चे को। Bapak, kalau anaknya tidak tahu caranya baca doa di dalam मेरा बेटा अगर मैं दुनिया से चले जाऊं तो मेरा बेटा tidak मेरे salah जनाजे पर क्या ajar दुआ anak करे? kita ada मैंने degree, सही किया उसके, मेरे tapi kita बेटे juga की kena ajar anak kita supaya ada agama. तो सही किया। मेरे अजीज भाइयों, कुछ बयान नहीं है, मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगियां बदलना है। Tentuan ini bukan untuk kita mau dengar bayan saja, tapi kita mau ada perubahan di dalam kehidupan kita. वो अनफुसकुम अहलीकुम नारा, आप अपने आप को, अपने घरवालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अल्लाह का हुक्म है। Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada अल्लाह neraka. हुक्म फरमाते हैं, दीनदार बनाए अपने बच्चों को। Jadi तो kalau नौजवान anak-anak लड़का kita जमात menjadi में anak-anak yang छह beragama. सिफात का मुजाकरा होता है, माशाल्लाह जो जमात ले गए वो देखे होंगे, 3 दिन की जमात में, छिले की जमात में 6 सिफात का, ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम, इखलास बयान होता है।
तो दूसरा नंबर आया, वो बच्चे को कहने लगे, वो बच्चा कहने लगा, नौजवान स्टूडेंट, नमाज का नंबर आया, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया, उसका तफसील बयान किया। अमीर साहब, नमाज क्या है? नमाज इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली चीज है। Jadi apabila mereka bawa pelajar-pelajar universiti ini keluar, 15 साल का नौजवान, baru umur 15 tahun, नमाज क्या है? इम्पॉसिबल को mereka belajar keluar jalan Allah SWT. ये नहीं हो सकता, वो नमाज से हो जाएगा। Muzakarah, mereka beritahu kepada profesor apa itu solat ialah perkara yang impossible jadi possible. मौलाना उमर पालन yang tidak boleh jadi करते थे बड़े आलिम dengan solat. लिसानुत तबलीग मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह adalah lidah kepada usaha agama tabligh. के लिए 5 लाइन की मेहनत करना है। Jadi kalau ada 5 perkara kita mau usaha. फजाइल वाला शौक हो, मसाइल वाला इल्म हो, अल्लाह वाला ध्यान हो, इखलास वाली नियत हो, दुआ वाला yaqin di dalam ilmu fadail. Kita kena ada pengetahuan tentang masail. इसलिए अपने घर में तालीम, Suatulah kita mau hidupkan taklim di rumah घर kita. में तालीम, जैसे वाटर प्रूफ घड़ियाल होती है, वाटर प्रूफ पूरा होता है ना, ये मासियत प्रूफ, गुनाह प्रूफ अपने बच्चों को बनाने के लिए घर की तालीम। Baju waterproof, kain waterproof. Kita mau kita punya rumah का माहौल असर नहीं करेगा maksiat अगर घर में 5-10 मिनट तालीम करें। tidak masuk maksiat dalam rumah kita. घर Dengan की sebab तालीम buat करेंगे taklim. तो बाहर के माहौल से मुतासिर नहीं होगा। Tidak ada kesan daripada luar dalam rumah kita. नमाज का यकीन आएगा। Akan datang keyakinan kepada solat. हमारे बड़ों ने अपने बच्चों के यकीन को बनाया। नान भाई दिल्ली के बड़े अल्लाह वाले थे। Ulama kita, उनके अमीर एक ulama kita, mereka ajar anak-anak mereka macam mana मकबरा भी है दिल्ली में। hasilkan ikat solat, macam mana hasilkan ilmu zikir yang benar. उनकी अम्मी ने ऐसी तरबियत की, जब भी बच्चा स्कूल से मदरसे से वापस आता, खाना पूछता, कहती 2 रकात नमाज पढ़ लो, अल्लाह देगा। Orang-orang terdahulu mereka bagi tarbiyah pada anak-anak. अल्लाह देगा। तो नमाज में खड़े होता, खाना जो है किसी जगह रख Anaknya pergi madrasah, dia balik pada madrasah, ibunya ajar sebelum makan, solat dulu 2 rakaat, minta pada Allah. कहीं ढूंढता खाना मिल जाता, रोटी मिल जाती। ये माहौल ने बच्चों का जहन बनाया, यकीन ईमान को बनाया। Kita mau bina, बच्चों का meyakinkan यकीन anak-anak kita, ईमान supaya अमल mereka बनाना है yakin माँ बाप की जिम्मेदारी है। segala-galanya datang daripada Allah. अल्लाह वाले बनाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। Untuk jadikan anak-anak menjadi anak-anak yang yakin pada Allah, ini adalah tanggung jawab ibu bapa. एक दिन ऐसा हुआ कि किसी काम से बाहर गई हुई थी माँ, बच्चा मदरसे वापस आ रहा है, आने में देर हो गई, घर आने में Pada satu hari anak ini और दिल के अंदर apabila dia pulang daripada madrasah, घर में ibu dia terlambat untuk sediakan makanan dia. अगर खाना नहीं होगा, इतने दिन से जो यकीन बनाया क्या होगा? Ibu dia pun risau, ibu dia बाप को क्या फिक्र है? अपना बेटे का ताल्लुक अल्लाह से सही होने की फिक्र। kerja di tempat lain. Dalam perjalanan ibu dia risau, kemana kali ini? घर में नहीं है, Ima yakin anak saya akan rosak. अम्मी घर में नहीं है, Dia balik, makanan ibu disediakan. क्या तरबियत थी? 2 रकात नमाज पढ़ो, ढूंढो। Anak dia seperti biasa. मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ा, Dia bertangan sejadah 2 rakaat, dia solat minta खाना pada मिल गया, Allah. रोटी जबरदस्त खा लिया। इधर माँ परेशान, Ibu dia pulang, ibu dia dalam keadaan माँ घर के अंदर दाखिल हुई, तो बच्चे को देखकर परेशान, क्या हुआ खाना खा लिया? ibu dia tanya, kau sudah makan? खाना खाया, आज का Anak dia खाना beritahu, बड़ा ibu, saya tidak pernah makan begitu sedap, lebih daripada hari अभी ini. इनको पकाने की जरूरत नहीं, वो अल्लाह से ले लेगा। एक बार यकीन बन गया ना, एक बार अल्लाह से लेने Lepas वाले itu बन ibu जाएंगे। dia tidak perlu lagi masak, sekali दूसरों का हम नजर डालने की जरूरत yakinan dia telah betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara telah betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadi kemudahan kepada ibu हम dia. कुर्बानी नहीं देंगे, अल्लाह की मदद नहीं पाएंगे। जब अल्लाह की मदद नहीं पाएंगे, हमारे मसले हल नहीं होंगे। Bantuan, bagaimana kita tidak dapat bantuan daripada Allah saja itu masalah kita तो tidak मेरा akan selesai. बुजुर्गों, बच्चों का यकीन बनाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। Untuk membina iman yakin anak-anak ini adalah tanggung jawab ibu bapa. बच्चों के अंदर पैदा नमाज का यकीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो इला कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। Nabi SAW bersabda, sejuk pandangan mata आंखों putih की dalam ठंडक solat. किसमें है? नमाज में है। Bila dalam solat. अल्लाहु अकबर। साहबा ऐसी नमाज पढ़ते थे। Sahabat juga telah sembahyang mereka. वाकयात पढ़े, घर में तालीम पढ़े, मालूम होगा। इसमें फज़ाइल अमल, फज़ाइल सदक़ात है। Berapa इसमें साहबा की जिंदगी है। kita mau buat fazil amal di dalam rumah kita supaya di rumah kita juga mereka ada kesungguhan usaha atas solat mereka, amal mereka. नाम फज़ाइल है, इस्लाम के 5 फराइज़ हैं।
नमाज है, रोजा है, रोजा। Dalam Islam ada Zakat 5 है, rukun zakat। Islam. हज है, हज। फजाइल अमल, Di antaranya sholat dan zakat. हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जी मौलाना शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से बार बार इसरार करके इसको लिखवाया, बार बार इसरार करके। देखो उम्मत के लिए जरूरत है कि उम्मत के अंदर 5 फराइज जिंदा हो जाए। हजरत यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा उनके खुतूत में लिखा हुआ है कि इज्तिमाई तालीम, उमूमी तालीम में इन फजाइल अमल, फजाइल सदक़ात से ही पढ़ाया जाए। Berkali-kali Maulana Yusuf rahmatullah alaih tulis dalam suratnya, harus tahu setiap rumah penting untuk baca 2 kitab ini, Fadail Amal dan Fadail Sedekah. क्या कह रहा है इसके पे? फजाइल में मेरे अजीज भाई बुजुर्गों, तो हमारे फजाइल में पढ़े, सहाबा की नमाज बताओ, सहाबा कैसी नमाज पढ़ते हैं? Yang kita mau tahu macam mana sahabat mereka tunaikan sholat. एक जो है अंसारी सहाबी, एक मुहाजिर सहाबी, 2 सहाबा को रुकाया निगरानी में, रात निगरानी करने के लिए। Apabila dia telah diputus untuk menjaga malam, मेरे बारे में कहा है, dia telah तो sholat. अंसारी सहाबी ने फरमाया, दोनों जाइए तो कहीं ऐसा ना दोनों सो जाए, आप आराम कर लो, मैं Sahabat जाऊंगा। Ansar ini beritahu jangan kita dua-dua berjaga, nanti dua-dua mengantuk, tidak ada orang yang berjaga malam. और सुला दिया मुहाजिर सहाबी को और तकबीर बांध के खड़े हो गए। Maka yang उनको sahabat नमाज में मजा आता था। Ansar ini sholat dan dia suruh sahabat dia yang muhajir ini, नमाज में उनका kamu tidur, nanti kita berganti-ganti sholat, ya kita berganti-ganti berjaga. तकबीर बांध के खड़े हो गए। Apabila sahabat yang Ansar ini telah mulai sholat, तो तीर लगा, tengah-tengah sholat maka dia telah dipanah. फिर खड़े तो दूसरी तीर लगी। Panah yang pertama telah tembus di dada, kemudian panah yang kedua lagi tembus. अपनी नमाज जारी रखे, Tetapi dia teruskan sholatnya. फिर वक्त हुआ तो नमाज खत्म किए, Selepas selesai sholat, सहाबी को जगाया, maka dia telah kejutkan kawannya. तो दुश्मन देखा एक तो 2 आया और कितने बार वो Apabila 2 orang sudah bangun, maka musuh ini apabila lihat, maka musuh ini telah lari. 1 2 3 तीर लगे, पहले ही जगह देते। सुभान अल्लाह, वो सहाबी का जवाब था, अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। मैं सूरा शुरू कर दिया, सूरह कहफ, उसको खत्म Sahabat करने से beritahu, दिल नहीं aku baca surah Kahf, वाह, aku tidak sanggup berhenti untuk baca क्या surah जान ini. होती थी नमाज में, क्या मजा आता था नमाज Bayangkan में। macam mana sahabat yang sholat, begitu mengasyikkan, begitu ada ruh sholat अपने mereka. अपने अपने बाग में नमाज पढ़ रहे हैं, तलहा रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहे हैं। Talha radhiyallahu anhu juga वो बाग बड़ा जो गुलजान था, उसमें दरख्त वगैरह भरे हुए थे, इधर उधर उड़ रहा था। Bila dia नमाज में sholat, खलल dia पैदा terlihat हो गई। seekor burung सलाम masuk di फेरे, dalam kebun और dia. जो उस Burung बाग itu को tersesat, अल्लाह के tidak dapat रास्ते jalan में दिया, keluar. जो नमाज के लिए रुकावट बने वो बाग की जरूरत नहीं। Dia beritahu apa yang membebankan dia मेरा dengan sholat, भाई, maka dia अगर tidak वो perlu बाग में lagi नमाज perkara itu. पढ़े तो फर्ज होगी नफिल होगी? Dia telah sedekahkan kebun dia. नफिल तो होगी। Tentu dia bukan sholat fardu, dia sholat sunat. नमाज में खलल पैदा है, Tapi dalam diri sahabat mereka ada दुनिया वो है kebesaran जो sholat. मददगार बने, जो दुनिया दिन के लिए रुकावट बने, वो दुनिया नहीं है, वो तो हमारे लिए मुसीबत है। Sahabat paham, sekiranya दुनिया perkara तो dunia आखिरत itu बनाने के लिए है, दुनिया बनाने के लिए mendatangkan नहीं। kerosakan di dalam amalan, दुनिया तो आखिरत बनाने के लिए itu अल्लाह ने bukan दी। kebaikan namanya, itu adalah तो musibah namanya. नमाज का कितना बड़ा मकाम होता है। Sahabat paham berapa besarnya मेरे darjat अजीज बुजुर्गों, sholat मेहनत ini. करके नमाज फजाइल के जरिए से नमाज का शौक पैदा करें। Macam mana kita boleh dapat keasyikan di dalam sholat, yaitu dengan mendengar majlis fadil नमाज का amal. यकीन पैदा करें, हमारे मसले नमाज से हल होंगे। Masalah kita akan selesai hanya हमारे dengan जिले बशीर sholat. साहब रहमतुल्लाह अलैह की जमात 1 साल में निकले, वो ईबी में थे, ईबी इलेक्ट्रिक बोर्ड, यही थे असिस्टेंट इंजीनियर। और गवर्नमेंट स्टाफ होकर छुट्टी कैसे मिलेगी? वही मसला है, अल्लाह का ताल्लुक सही हो गया, मखलूक का ताल्लुक अल्लाह सही कर देंगे। चाहे कहीं भी स्टाफ हो, छुट्टी देने वाला कौन है? अल्लाह है। हमें अल्लाह से बात करना आ जाए, अल्लाह से कहना आ जाए, अल्लाह से बोलना आ जाए, अल्लाह का ताल्लुक पैदा हो जाए, फिर कोई मसला ही नहीं रहेगा। प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, छुट्टी तो अल्लाह देगा। वो 1 साल Cuti Allah yang bagi seorang engineer, dia kerja. लंबी बहुत कारगुजार उनके साथ मेरा अक्सर उनके साथ मेरा चला लगता था पढ़ते जमाने में। तो 1 साल जमात में Di masa 1 tahun गवर्नमेंट में काम करते थे, छुट्टी अल्लाह ने उसका हिस्सा भी सुनाया कैसे 1 साल की छुट्टी ceritakan macam mana dia dapatkan cuti. तो अगर वो अफ्रीका में गए 1 साल,
उलमा भी थे उस जमाने में। ये तो dalam इंजीनियर jemaah थे। itu ada alim ulama. आप जैसे अफ्रीका के अंदर एक सूबे से दूसरा सूबा जाना था, Mereka तो berjalan सूबा daripada बदलेगा तो satu जबान negeri बदल ke गई, satu उसके लिए negeri. तर्जुमान जरूरत था। Suatu mereka मुसलमान मुल्क perlukan का एक पुलिस penterjemah. ऑफिसर था, उसको उन्होंने तश्कील की, फिर दूसरे सूबे के लिए छिले की हमारी तश्कील है, तर्जुमान Kita नहीं है, keluar आप हमारे sana साथ tidak आए। ada penterjemah. उन्होंने कहा Mereka मेरे beritahu, पास तो छुट्टी नहीं है, मेरे पास तो saya छुट्टी tidak नहीं है। dapat libur, tidak dapat मैं बोल cuti. रहा है कौन आपको छुट्टी देता है? Siapa yang bagi kamu cuti? मेरा ऊपर का हाफिजर है, तो उससे मिलाओ। Atau yang उससे क्या करो? उससे मिला, या उससे पास- अपॉइंटमेंट लिया और उनसे जाकर बात करके उनकी तश्कील की। orang yang kerja di ना बाप को pejabat तश्कील करते हैं ना, di atas अपने आप को minta. बचाने के लिए बेटे को कुर्बान कर देता, बेटे को लेकर जाते मान। Akhirnya kita taskil orang yang kerja di pejabat atas. यजमान को तश्कील करते तो नौकर को भेज देता, आप इसी नौकर को ले जाते मान। Begitu, oke lah, jangan taskil saya bawa setiap जाकर kerja उनको keluar. मजबूत बात करके तश्कील की, छिले में लिख लो, वरना मैं निकल नहीं सकता। Begitu तो saya उनका dapat जो keluar. असिस्टेंट था उसको देखकर कहता स्कूल लेकर जाओ, Ada saya punya asisten, kau boleh dikeluar. स्कूल लेकर जाओ। नहीं फरमाया वो तो छुट्टी नहीं कहता है, छुट्टी मैं देता हूँ, लेकर जाओ। Bukan dia yang bagi cuti, Allah yang bagi cuti. ये हिकमत है, दावत का काम करते हैं तो अल्लाह हिकमत समझाते हैं। Allah bagi ये बसीरत है, बसीरत। hikmah dalam kerja ini apabila kita buat sungguh-sungguh. एक बकरे का ताजिर है, बकरा बेचते हैं ना, Satu orang तो हाथ लगा के कहता है 8 किलो आएगा, 9 किलो आएगा, 10 किलो आएगा, 100 ग्राम भी आगे पीछे नहीं होगा। हाथ रखते ही कहेगा, हाथ डालेगा कहेगा ये 12 किलो, मेरा एरिया वही है, पूरे खसाई लोग हैं मेरे। orang yang selalu berjual beli daging, mereka tahu, mereka जब उसमें potong लगा dia उसकी berapa बसीरत अल्लाह ने सिखा दी, उसकी banyak हिकमत daging अल्लाह itu ने dia tahu सिखा दी। berapa kilo. दावत में लगेंगे तो दावत की हिकमत अल्लाह सिखाएंगे। Itu yang दावत sampai बयान से apabila नहीं kita समझ में आता, sentiasa bagi दावत dakwah, सुनने से Allah समझ में SWT आता। yang sendiri akan bagi paham kepada kita, Allah SWT akan bagi kita ilmu hikmah. अपने आप को लगाएंगे इखलास से, अल्लाह समझाएंगे दावत की मेहनत क्या है। Allah sendiri akan bagi paham kepada kita. बयान Kita करके हम dakwah. समझा नहीं सकते, Bukan dengan bagi तो bayang बंदा kita akan तैयार हो berusaha, गया छिलने tidak. के लिए, निकली जमान Dengan एयरपोर्ट keluar, पहुंची dengan susah payah. और वो पहुंचते थोड़ा देर हुई जमान, बोर्डिंग क्लोज हो गया। अभी क्या करें? वो ऐसा आज फ्लाइट निकले तो फिर कल फ्लाइट, हर दिन की फ्लाइट। कभी कभी हमारे इंडिया में पाटना में हमारी जमात गई, मगरिब में एक फ्लाइट, फिर अगले दिन मगरिब में एक फ्लाइट। हमारे एक साथी के वालिद का इंतकाल हो गया, फ्लाइट नहीं, अगले दिन ही फ्लाइट, वो जा नहीं सके। इंडिया में है तो वो अफ्रीका में कैसा होगा? फ्लाइट नहीं, बोर्डिंग Bila क्लोज हो flight sudah गया, tutup, अभी खत्म। bila फिर पुलिस berlepasan, वाला के साथ maka आया tidak boleh वो masuk. कहने लगा अमीर साहब, मैं जाके एक फोन करके आता, जाके एक कॉल था, फोन करके आता। आमिर साहब समझे ये कोई ऑफिसर है, किसी से बात करेगा, जल्दी जाओ। वो जमाना ऐसा नहीं था कि मोबाइल है, व्हाट्सएप है, वो जमाना क्या है, अभी वो बूथ होता ना, टेलीफोन बूथ, काइंस डाल के बात करना पड़ता है। तो गया, थोड़ी देर वो जाके थोड़ी देर हुआ, और ये इम्पॉसिबल है, बोर्डिंग क्लोज ओपन नहीं होता, इम्पॉसिबल, ओपन हो गया और बुलाया, जल्दी चलो आप लोग चलो। वो जो गया, पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा है। देख साथी को भेजा, देखो कहाँ है, इधर ये बूथ नहीं, इधर ये बूथ, किस उधर बूथ के पास वो दुआ में बैठा हुआ है, दुआ में बैठा हुआ है। भाई क्या करते हो? फोन करने के लिए। हाँ अमीर साहब, मैं अल्लाह से फोन करने के लिए। अल्लाह से। Orang sudah berlepas tertutup. मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ने dia baca doa, अल्लाह Allah की SWT मदद हासिल buka करने के semula. लिए नमाज दी है। Contohnya apa kau buat? Dia bagi tahu saya telepon इम्पॉसिबल को Allah. पॉसिबल बनाने वाली चीज Follow नमाज है। Allah. Ketika itu tidak ada telepon, tidak ada अल्लाह के WhatsApp. नुसरत के दरवाजे को खोलने वाली चीज नमाज है। ये काम भी doa, बनता, dengan ये काम भी sholat, होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, नमाज से होगा वो। हम नमाज से ना होने से ताजुब करते हैं, सहाबा नमाज पढ़कर नहीं होने से ताजुब करते हैं। नमाज पढ़कर बन गया, हमें ताजुब होता है, 2 रकात नमाज पढ़ा, काम बन गया। Sahabat और mereka दूसरा tidak कोई heran रास्ता नहीं, dengan वही तो sholat 2 रास्ता है। rakaat selesai masalah. अभी Kita ताजुब heran. हो गए नमाज से, Kebalik. नमाज पढ़कर कोई काम बन जाए Kita तो sholat 2 ताजुब rakaat, kalau होता है। selesai masalah kita heran terus. ताजुब से कहते हैं। Kita akan नमाज heran, तो kita अल्लाह से akan लेने का एक ही takjub. रास्ता है। Sahabat bagi mereka biasa. हमारे मद्रास में एक और एक थे, हाजी ताजुद्दीन साहब। Di और रेलवे Madrasah स्टाफ, ini ada रेलवे satu orang स्टाफ। Haji हाजी Tajuddin. ताजुद्दीन। फ्रांस के जो शेख यूनुस हैं, उनको वही तश्कील की। Yunus di France. पुरानी Dia keluar di sana di France.
हाजी ताजुद्दीन साहब वो इंग्लिश डान गवर्नमेंट स्टाफ थे, हमारे बुजुर्गों की जमा जाके तो तर्जुमा करते। Dia pandai cakap English. तबलीग में तो अपना जान अपना माल है। तो बात आ गई तो कह दो, तबलीग के 3 उसूल है। तबलीग के Dalam tabligh ini 3 ada उसूल 3. है। हजरत जी ने जब काम को शुरू किया तो 3 उसूल बनाए दावत की मेहनत के। उसूल का माना है फाउंडेशन। Apa itu usul? Usul ialah क्या बोल foundation. फाउंडेशन, बिल्डिंग के पहले फाउंडेशन बनाते फिर बिल्डिंग बनाते। Sebelum kita buat bangunan, kita buat foundation dulu. बुनियाद मजबूत, Asas तो तामीर मजबूत। बुनियाद कमजोर, Kalau तामीर कमजोर। asasnya kuat, barulah bangunannya kuat. हजरत जी ने दावत के मुबारक मेहनत को 3 बुनियादों पर खड़ा किया है। Andraji beritahu tiga asas kepada kerja ini. तो सबसे पहला दावत का जो उसूल है हजरत जी ने बनाया, अपना जान अपना माल है, हमारा उसूल है। Yang pertama sekali diri अपना atau जान masa sendiri. अपना माल, इसमें बड़ी हिकमत है। जब अपना जान अपना माल लगाता है आदमी, तो आदमी को फिक्र पैदा होती है कि सही लगा। Bila dia gunakan diri atau masa sendiri, maka dia akan fikir betul. उसकी बड़ी हिकमत है। कोई अपने जान अपना माल लगाए, कोई पूछ नहीं सकता कि इधर क्यों लगाते हैं, उधर क्यों लगाते हैं। Dia akan fikir kenapa saya letakkan diri harta masa saya pada perkara ini. कहाँ लगाना है? दूसरों का माल है, अपना काम है, तो मालिक है, मैं नौकर हूँ, जो बोले मैं करूँ, सही गलत उसका मुझको कोई पता नहीं। जब अपना माल अपना जान लगाता है तो आदमी को फिक्र पैदा होती। हजरत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत का उसूल बनाया, सबसे बड़ा उसूल। अब पहला उसूल अपना जान अपना माल पर इस उम्मत को खड़ा किया। दूसरा उसूल, इससे बड़ा उसूल हजरत जी ने बनाया। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत शुरू करने से पहले जो दूसरा उसूल बनाया, इसको मैंने दिल्ली के जिम्मेदार और अमीर थे वो हाजी मुमताज साहब, उनकी जो है वो इंतकाल हो गया उनका, उन्होंने हमारे से मुज़ाकरा किया, हमारी मस्तूरात की बात। दूसरा उसूल हजरत जी ने बनाया, महा उसूल, बड़ा उसूल। तबलीग में फजाइल है, मसाइल नहीं। Dalam tabligh kesuksesan mendengarkan fadilat-fadilat, bukan mendengarkan इसलिए कि फजाइल में इख्तिलाफ नहीं है, मसाइल में इख्तिलाफ है। Masail banyak percanggahan. मसा करने में कितना इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं रुकू नाज करो, 4 में एक हिस्सा करो। इमाम शाफी कहते हैं शय्यु मिनर Imam Syafi'i bagi tahu lain, Imam Hanafi bagi tahu lain. इमाम मालिक कहते हैं इस्तियाब करो, पूरा सरका करो, एक पसे में इतने मसले। हमारे बड़ों ने फरमाया, हजरत इलियास साहब ने फजाइल उसूल बनाया, हमारे यहाँ फजाइल है, मसाइल नहीं है। फजाइल होना तो तबलीग में हो, मसाइल होना तो मदरसा जाओ। Untuk menyebarkan fadail inilah kerja jemaah tabligh. Untuk menyebarkan masail inilah kerja di 100 madrasah. साल से अल्लाह ने और क़यामत तक अल्लाह कायम रखे कि दावत की इस मेहनत, इसकी बुनियाद फजाइल है। हजरत जी का उसूल है, Sampai hari kiamat kerja हजरत जी का उसूल है फजाइल। asasnya ialah mendengarkan fadail-fadail. बनाया दावत, बाद में बात आगे तो कह रहा हूँ। तीसरा उसूल इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बनाया, Yang ketiga, अल्लाह जो कुछ दिया है सब कुछ लगाना है, जान माल सलाहियत सब apa कुछ saja Allah लगाना है। SWT bagi, अल्लाह यही लगाने के लिए semua kita लेना, gunakan बदला लेना है, आखिरत untuk में agama दुनिया Allah. में कुछ नहीं चाहिए। Tidak mau apa-apa untuk कोई agama. अमीर कहे, कोई जिम्मेदार कहे, कोई वावा कहे, कोई इज्जत करे, कोई नहीं चाहिए। Apapun saya tidak mau jadi orang अगर tanggung दीन की jawab, मेहनत tidak mau करे, दुनिया चाहे, Kenapa अल्लाह का काम nama करे, खैरुल्लाह से इज्जत चाहे, इससे बदतरीन सौदा कोई नहीं हो सकता। tidak mau apa-apa kelebihan daripada keduniaan. अल्लाह का काम करे, खैरुल्लाह को चाहे, Kita buat kerja Allah karena kita mau इससे बड़ा selain क्या daripada नुकसान Allah. होगा। हमारे हजरत नाराज नहीं होना, हमारे उस्ताद हमारे मोहतरम साहब इसकी मिसाल अजीब देते हैं, अच्छी नहीं लगती लेकिन दिमाग में लगती है। हमारे हजरत कहते हैं हमारा दीन का तस्करा काम है। करके दुनिया चाहना, अल्लाह का काम करके गैरुल्लाह को चाहना ऐसा है इतर दे के गोबर ले इतर देंगे तो इतर है मकसद अल्लाह है हमारा, तो Tujuan अल्लाह kita चाहिए untuk dapatkan Allah. और कोई हमारा मकसद नहीं। साहबा कहते थे कि इन्ना हिम्ममुन अल-आखिरह, इन्नमा हिम्ममुन अल-आखिरह, हमारे अज़ाइम तो आखिरत है, हमारे आखिरत बन जाए, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। Kita punya kehendak hanyalah akhirat. शाह अब्दुल कादिर Tidak berkehendak apa-apa pun terhadap वो dunia. कहते थे मैं अल्लाह के पास जाते वक्त कुछ भी नहीं लेकर जाना है तो मौत आखिर वक्त में करीब अपना जो कुर्ता पैजामा था वो भी अपने खादिम को दे दिए, अपने खादिम को दे दिए। शाह अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए और उनसे किराए पे लेकर फिरते थे।
अल्लाह के पास saat dia meninggal dunia, baju dia pun dia sudah bagi kepada khadam dia. खाली हाथ गया और खाली हाथ तेरे पास आया, मेरा दुनिया का कोई मेरे पास कुछ नहीं। Saya tidak mau apa-apa pun di dunia. अल्लाह अकबर, वो भी तो अल्लाह वाले Datang dengan tangan yang kosong, balik pun dengan tangan yang kosong. असल आखिरत है, असल आखिरत है, Asal tujuan kita आखिरत adalah पाने akhirat. के लिए आए हैं, सब कुछ लगाना है, लेना है आखिरत में, दुनिया हमारा मकसद है। Kita gunakan segala-galanya untuk akhirat. Kita datang di dunia तो untuk क्या कहना ambil था? dunia, अल्लाह के रास्ते में tapi निकल kita अपना gunakan जाना untuk था। akhirat. हाजी ताजुद्दीन साहब के पास सफर में चले हो, मुल्कों का सफर था, सफर टिकट का खर्चा कम हो गया, खत्म हो गया, और किसी से सवाल भी नहीं है तबलीग में, इसराफ नहीं, इशराफ नहीं, सवाल नहीं, बगैर इजाजत के tidak किसी चीज mubazir, को लेना tidak नहीं meminta तबलीग pada में। siapa-siapa. सवाल तो नहीं करना, दुआ करना है, सवाल नहीं करना है। Doa लोगों से minta मांगे hanya तो pada ठीक है, Allah. अल्लाह से मांगे Tidak तो दुआ minta है। saya pada Allah. लोग मांगने से नाराज होते, अल्लाह मांगने से खुश होता है। Semakin kita minta pada manusia, mereka akan marah. Semakin kita minta kepada Allah, semakin Allah gembira. 2 रकात नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआ की, Selain 2 rakaat minta pada Allah. टिकट देने के लिए क्यू में जाकर खड़े हो गए, पैकेट में पैसे नहीं, टिकट काउंटर में टिकट लेने खड़े हुए हैं, पैकेट में पैसे नहीं है, लेकिन क्या है, दिल के अंदर यकीन है टिकट अल्लाह देगा। अल्लाह सिखाया, अल्लाह हुक्म है नमाज पढ़ने का, नमाज तो पढ़ दिया, बस तुझसे कह दिया कि तू देना है। Allah yang bagi segalanya. खड़े हो Allah गए yang bagi. टिकट में, 10-12 आदमी है, 6-7 आदमी गए तो अंदर से एकदम बीपी चढ़ रहा है। अभी खरीद जाएंगे, पैसे नहीं तो फिर वापस, अच्छा नहीं, पीछे भी क्यों, दिल कहा चले जाओ, फिर अंदर से नहीं खड़े हो, अन्ना तेरा काम, टिकट देना था। ये मेहनत, ये यकीन को पैदा करना। Usaha ini adalah untuk mendatangkan तो keyakinan. 5-4, 2 आदमी पीछे, तीसरे आदमी खड़े हैं, और हैबत हो गई, अब तो चले ही जाएंगे, फिर कहा अब तो चल जाएंगे, एक आदमी और दूसरे, अब क्या कहेगा, इनका नंबर है, सुबह टिकट काउंटर आवाज आई, हाजी ताजुद्दीन बोला बापा, तमिल अपनी जबान, वो अपने तमिलनाडु का था, हाजी ताजुद्दीन बोला बापा, बोले तो समझ में नहीं, कौन बुला रहा है मुझको अंदर, तो अंदर गए तो इनका पुराना स्कूल का क्लासमेट बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ है, क्लासमेट बैठा हुआ है। तो पूछा भाई कहाँ आ गए आप, तो क्या ऐसा ऐसा सफर है, ऐसे ऐसे दिन की सोशल सर्विस है, निकले, ऐसा बातचीत हो रही थी, थोड़ी बात खत्म हुई, वो जो उनका दोस्त था उनसे दरखास्त करने लगा, हाजी ताजुद्दीन उनसे सुनने के भी apa Dia mau terbang tidak ada tiket. उनसे सुनना के भी Dia minta kepada Allah SWT. Tiba-tiba kaunter panggil nama dia, Haji Tajuddin. Dia pernah heran siapa ini. Rupanya yang duduk di kaunter itu bekas classmate dia. इनकार नहीं, Nah, classmate dia panggil Haji Tajuddin, Haji Tajuddin. ठीक है, कहो क्या बात है, फरमाया अब से लेकर वापसी तक जितना टिकट का खर्चा है भराएगा, उसको दे दो। Apabila jumpa kawan lama dia, dan dia cerita, kawan lama dia beritahu sekarang semua kau punya tiket, nah kamilah yang akan atur daripada मेहनत करके engkau pergi sampai pulang, semua kami yang belanja, semua kami yang atur. नमाज से लेने वाले बन जाए। Itu tentu kita mau jadikan diri kita orang yang नमाज के अंदर अल्लाह बड़ी sentiasa ताकत रखे, meminta Allah SWT dengan बड़ी sholat. ताकत रखे। ये मेहनत है, मश्क है, अल्लाह के रास्ते में निकल लंबी लंबी नमाजें पढ़कर Usaha अपना untuk काम kita अल्लाह से सही करें, belajar, latih diri kita अल्लाह के untuk रास्ते sholat. में निकलकर Sholat dalam मेहनत करें, keadaan अपने masa yang panjang-panjang. नमाज पर मेहनत है। हाँ। तो फजाइल वाला शो, मसाइल वाला इल्म, हज़रत मौलाना उमर फारूक नाम का करना है, मसाइल वाला इल्म वो उलमा से मिलेगा, उलमा से ताल्लुक करो, उलमा से Untuk मुलाकात करो, datangkan keasyikan उलमा से kepada अपना ताल्लुक रखो, amalan, maka kita kena dengar banyak fadilat amal. उलमा Untuk अपने कीमती उम्र का menambahkan ilmu masail kita, अहम हिस्सा, maka kita kena 16 साल berdamping से dengan लेकर alim 24 ulama. साल की जो उम्र होती है, 8-10 साल बड़े कीमती होते हैं अल्लाह के दीन के लिए। अब सब कुछ कुर्बान कर कर अल्लाह के घर में जाकर बैठकर दीन सीख कर आते हैं। इसलिए मेरा अजीज भाई बुजुर्गों, मसाइल वाला इल्म, अल्लाह वाला ध्यान, सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी, फिर फरमाया दुआ वाला यकीन, अल्लाह वाला ध्यान, इखलास वाली नीयत, नमाज में इखलास पैदा करें, नमाज में इखलास पैदा करें और हमारे अंदर अल्लाह से लेने वाला यकीन पैदा हो जाए। इसके
इसके लिए मेरे अजीज भाई बुजुर्गों, kita अल्लाह ने sentiasa मुबारक jaga मेहनत zikir दी, kita 300 pagi 300 मेहनत petang. करके अपने दिल के अंदर मेहनत करके Dapatkan keikhlasan maka kita अपना kena यकीन भी सही हो जाए, उम्मत का यकीन भी सही हो जाए। मेरा amalan अजीज kita भाई बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल की मेहनत में ऐसा नक्शा बनाया, 600 साल की गुमराही 23 साल की मेहनत से खत्म हो गई। जो 600 साल की गुमराही, 571 साल नबी नहीं आए थे, जहालत, इंतहाई जहालत, गुमराही, इंतहाई गुमराही, कोई उन पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया। नुबुव्वत की जो उम्र थी सिर्फ 23 साल की थी, 13 साल 10 साल 23 साल की मेहनत की, और सारे आलम के लिए नबी और कयामत तक आने वाले आखिर इंसान के लिए हमारे नबी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत का कैसा करना है उसका हक अदा किया। तो मेरे अजीज भाइयों, वो मेहनत की तासीर ये थी, 23 साल में गुमराही खत्म हो गई। अय्या में जाहिलियत 23 tahun dia Nabi SAW buat usaha. जहालत के जमाने 200 को tahun अल्लाह ने punya kejahilan telah hilang. लोग ऐसे बन गए daripada जो हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं थे, हैवान से बदतर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजुम व बिअय्यि इक्तदैतुम इहतदैत। मेरे सहाबा सितारे के मानिंदे Zaman Nabi Isa zaman Nabi SAW lebih kurang 500 tahun tidak ada orang yang mendakwakan agama Islam. Bayangkan kemana punya kejahilan, sehingga tidak ada kerajaan yang mau jajah mereka. Tapi Nabi SAW telah buat usaha selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nabi SAW telah buat usaha itu dahsyat, sehingga sahabat beritahu, ya Rasulullah, engkau bukan sampaikan agama pada kami, tapi engkau telah tunaikan hak agama kata kami. Jadi Nabi SAW buat usaha dalam masa yang begitu singkat telah menghapuskan segala kejahilan, segala kezulumatan yang ada dalam diri sahabat. तो मौलाना बैठे हुए कमरे में, अब क्या कहेंगे? जाकर कहेंगे तो बुलाने के लिए कहेंगे ना, बुला कर आओ। तो इन्होंने अक्ल के घोड़े चलाए, हजरत ने खुद फरमाया, हमद साहब खुद फरमाया। तो वैसे अब जाकर कहो तो बुलाने के लिए बुलाएंगे, तो जाकर डायरेक्ट कह दिया, हजरत आपको याद फरमा रहे हैं, हजरत आपको याद फरमा रहे हैं। तो फौरन मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो लेकर तैयार होकर हजरत के पास हाजिर, हजरत आपने याद फरमाया। हजरत जी पर मैं तो आपको बुलाया याद नहीं, तो आपको बुलाया, वो तो चले गए। कौन कौन अटक गए? लाट साहब अटक गए। हजरत कहते हैं, वो तो हजरत का बयान वो बॉडी लैंग्वेज के साथ होता ना, मौलाना अहमद लाट साहब का। तो कहते में मौली साहब बोलते हैं हाजिर गए, अभी हजरत के पास खड़े होना है, अभी क्या कहेंगे? हजरत का बड़ा रोब होता। हजरत इमाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से निगाह लगाकर बात नहीं, शहजादे जैसे होते, इतनी बड़ी बड़ी कारगुजारियां, अभी उसका वक्त नहीं। हजरत बोले, मौली साहब ने क्या कहा? अल्लाह हमारे बुजुर्गों की खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए। कहां से कहां उसूल सिखा रहे, उसूल है उसूल। मौली साहब पूरा तबलीग का खुलासा समझ लो, पूरा तबलीग का खुलासा समझ लो। पूरा तबलीग का खुलासा यह है, जितना बोले उतना करना, जैसा बोलते वैसा करना। जितना बोले उतना करना, जैसा बोले वैसा करना। तबलीग का उसूल समझा दी। तबलीग का क्या orang उसूल? tanya mohon para kuliah हजरत के पास आते, हजरत Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi बड़े लोग आते, बड़े लोग saya dalam बात करते tubuhnya. हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा कर ले अच्छा था, Orang ऐसा tanya करते wahai अच्छा, ऐसा Maulana करते Umar, अच्छा होता। तो मौलाना हजरत एक ही बात फरमाते, khulasa हम तो लकीर के apakah फकीर हैं। uraian secara ringkas daripada tabligh ini? हम लकीर के Maulana हमारा para जो kuliah गुरुद्वारे lebih जो tahu रास्ते पर चले उसी रास्ते पर चलेंगे। sebanyak mana yang kita cakap, sebanyak itu kita तो buat. मेरे अजीज भाई बुजुर्गों, लेकिन Apa yang kita cakap kita kena buat. Inilah khulasa daripada kerja dakwah tabligh. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजबे को बनाया, ऐसा मेहनत का खुलासा बनाया। जब मेहनत का खजा हो जाएगा, अल्लाह मेहनत के अंदर ऐसी तासीर रखे हैं। तो मेरे अजीज बुजुर्गों, हुजूर मदीने में मेहनत कर रहे, एक सहाबी seperti mana Nabi SAW मुकल्लिम berusaha di मुस्लिम, उनका Madinah. लक़ब है भेड़े से बात करने वाले, भेड़े से बात करने वाले, मुकल्लिम मुस्लिम उनका लक़ब है, मुकल्लिम मुस्लिम। वो बकरियां चरवा रहे थे, एक भेड़िया बकरी लेकर भाग गया, बकरी लेकर बच्चा लेकर भाग गया, तो पीछे दौड़े
और उस बकरी Satu ekor serigala telah बकरी के बच्चे को निकाला baham anak kambing dia. फिर के बात किया कितना जालिम हो गया Apabila dia telah kejar serigala itu, क्या मेरी रोजी की मेरे जबान से ले रहे हो maka dia ambil anak kambing itu. भेड़िया बात कर रहा है जो Pengembala kambing itu cakap, wahai serigala, begitu zalim yang kau telah baham telah makan anak kambing saya. Dengan izin Allah, serigala itu telah berkata, wahai pengembala kambing, sesungguhnya engkau lebih zalim daripada saya. Sesungguhnya kambing ini memang Allah SWT sudah tulis rezeki saya. Tetapi kamu sekarang sudah ada satu orang Nabi datang di Madinah, kamu masih lagi di sini. Kamu tidak pergi di Madinah untuk beriman kepadanya. Seperti mana yang dikehendaki kita buat, begitulah kita kena buat. Nabi SAW telah buat seperti mana yang Allah kehendaki. Lebihnya Allah SWT yang buat. Di siang hari jumpa manusia, di malam hari berdiri di depan Allah dengan masa yang panjang, berdoa dengan penuh tangisan. अपना ताल्लुक अल्लाह से पैदा करने के लिए दावत की मुबारक मेहनत अल्लाह ने दिया है अपने आप को untuk kita dapat hubungan dengan Allah bagi kita kerja dakwah. उम्मत के लिए रात में रोने वाले बने Kita mau jadikan umat ini menjadi orang yang menangis di depan Allah di tengah malam. खुद तो रोना नहीं आ रहा है तो उम्मत के लिए कहां से रोएंगे अल्लाह से रोकर इस उम्मत को हिदायत के रास्ते पर Kalau kita tidak nangis di depan Allah SWT, siapa yang mau nangis di depan Allah SWT untuk umatnya? इसमें आप अपने आप को लगाएं अपनी जिंदगी का मकसद बनाएं Tentulah kita menjadikan kerja ini kerja मेहनत करके maksud एक माहौल बनाया बच्चे का जज्बा नौजवान का जज्बा बूढ़े का जज्बा मादर का जज्बा गरीब का जज्बा अल्लाह का दिन जिंदा हो जाए kita mau setiap orang, lelaki, wanita, tua, muda, miskin, kaya, semua jazbah kita supaya macam mana menghidupkan agama Allah. तो मैं आज अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा आधा माल लाके रख दिए अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या किए पूरा लाके रख दिए हुजूर ने उमर से पूछा क्या लेकर आए आधा माल लेकर आए या रसूल Nabi SAW tanya Abu Bakar, अबू बकर से पूछा क्या छोड़ कर आए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को berapa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasul saja. Segala-galanya kita telah bawa di jannah Allah. दोनों हाथ नहीं क्या करेंगे Nabi tanya Umar, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Separuh. दोनों हाथ नहीं ये क्या करेंगे हम क्या करेंगे दोनों हाथ ना हो तो क्या करेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दीन का जज्बा बनाया जो हाथ ना हो वो सहाबी ये यहूदी के बाद में जाकर अपने दान से dikatakan tidak tangan apa yang kita beri buat agama ini. Tentu di zaman sahabat ada satu orang sahabat Nabi SAW tidak ada tangan. Dia telah bekerja di kebun orang Yahudi, siram pokok kurma. Duit yang dia dapat, kurma yang dia dapat, ini dia gunakan untuk korban jalan Allah. दीन मकसद बनाया अल्लाह का दीन जिंदा होना ये जिंदगी का मकसद था अल्लाह उनसे दीन का काम लिया हम दुनिया मकसद बना लिए अल्लाह ने दुनिया में हमें रुका दी जवानी भी खत्म हो गई yang jadikan agama sebagai maksud dia maka Allah SWT akan ambil kerja daripada dia. अल्लाह का दीन मिटला है हमें कोई दिल के अंदर कोई खुमार भी नहीं पड़ा Orang yang telah jadikan dunia sebagai maksud kehidupan dia sanggup korban segala-galanya untuk dunia ni. Orang yang jadikan akhirat agama sebagai maksud kehidupan dia sanggup korbankan segala-galanya untuk agama Allah SWT. Atas maksud ini kita siap sedia insyaAllah untuk korban di jalan Allah SWT. Namun tuan-tuan, kita sediakan diri kita untuk korban agama di atas agama Allah SWT insyaAllah. दीन के वक्त कहाँ लग गया अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए इस अल्लाह हमारी जवानी हमारी जिंदगी किस तरह लगा ले इससे बढ़कर अल्लाह की क्या नेमत होगी kita mau masa kita sisa-sisa kehidupan kita yang masih ada kita gunakan di jalan Allah. लिखाओ भाई उधर भी लिखने वाले खड़े हो जाओ माशाल्लाह तशकील वाले उधर भी लिखो माशाल्लाह इधर भी लिखो माशाल्लाह अल्लाह इनके जान में माल में जवानी में अल्लाह बरकत दे आमीन अल्लाह पूरी दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बने आमीन बोलो भाई आमीन तो बोलो आमीन अदा करो आमीन यूके के लिए 1 साल लग गया यूके के लिए 1 साल लग गया इंशाल्लाह अपनी आखिरत बनाने के लिए 4 महीने बहुत कम है Hong Kong, Taiwan, Korea अल्लाह को पूरी दुनिया के लिए कबूल कर अल्लाह के दीन के लिए कबूल कर ये खानदान नस्ल अल्लाह कबूल कर
Zahura, Allah kabul. Allah kabul. Allah SWT terima tuan-tuan. नहीं कोई जाने का माहौल ना बनाए, बैठे रहना, साथ देना, ये भी दिन की मदद है। Allah kabul फरमाए, Allah kabul फरमाए, Allah इनके जिंदगी का Allah kabul फरमाए। Nah, tuan-tuan aminkan orang yang keluar ini pun dikira tuan-tuan bantu orang yang keluar yang Allah इधर कितने वाले इधर apa makanannya? Allah kabul फरमाए, Allah इनके जवानी में Allah kabul फरमाए, खूब मरने के दिन के लिए kabul फरमाए। मोहम्मद डॉक्टर tulisan dulu. jangan मोहम्मद Allah kabul फरमाए, पूरी दुनिया के लिए kabul फरमाए। Allah akan नस्ल में Allah बरकत देना। Allah kabul फरमाए, Allah इनके जवानी को kabul फरमाए। हमारी दुनिया के क्या नाम लिखिए? क्या नाम है? रिजवानुल्लाह। जन्नत से दारोगा है, हम अभी ख्याल करो। आपके पास ही करना है, रिजवान के पास देख लो, ऑपरेशन दे दो। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। depan man. क्या नाम? नईम शेख। एक बार गौर से सुनो, एक बार गौर से सुनो। नगद जो तैयार है इंशाल्लाह इधर बाएं तरफ आ जाओ, इधर बाएं तरफ आ जाओ। हिम्मत करो इंशाल्लाह, हिम्मत करो इंशाल्लाह। नगद जाने वाले इंशाल्लाह इधर आ जाए तो तरतीब हो जाएगी। इस तरफ आ जाए इंशाल्लाह, बाएं तरफ आ जाए इंशाल्लाह। कोई ऐसा नाम है कोई बाकी रह जाए। छिल्ले के लिए भी नाम दिखाए, छिल्ले वाले भी बताए, छिल्ले वाले भी इंशाल्लाह, छिल्ले वाले भी बताए इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे छिल्ला इंशाल्लाह। एक छिल्ला अल्लाह के दिन के लिए। क्या नाम? आज आप ये बार लगा देना, यही लगाते हैं। नासिर 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 नगद Insyaallah azam. नासिर अल्लाह कबूल फरमाए। नासिर नासिर अल्लाह कबूल फरमाए। जवान दे माल माशाअल्लाह। आपस में तशकील करें, मैं आपस में तशकील करें, आपस में आस-पास में तशकील करें इंशाल्लाह। सब इरादा करें, सबका लग जाए इंशाल्लाह। Makin banyak.